سرورا شاہ کریما دستگیر اشرفا. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الحالكين شفيعا. فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ آقائے دو جہاں فخر رسولاں سید انس و جاں انیس بے قرارا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں نذران درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت خوانی مسلمان شروع سے کرتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، اور نعت پاک سننا بہت ہی اعلیٰ درجے کا کام ہے. نعت پاک کو قوالی نہیں بنانا چاہیے، اور نعت پاک کو نعت پاک کی حد تک ہی رکھنا چاہیے. جلسہ جلوس کا انعقاد ہی ہوتا ہے کہ اس میں دین کی باتیں ہوں گی، قرآن اور حدیث کی باتیں ہوں گی. بے شک جو کام بنگال اور اڑیسہ کے لوگ کیا کرتے تھے جہالت میں، وہ کام اب اتر پردیش کے لوگ کر رہے ہیں جان بوجھ کر. جب آپ نے نعت پاک غور سے سنی اور سننے کے بعد بیک وقت سارے لوگ اٹھ کے جانے لگے، یہ کام تو بنگال کے جاہل بھی نہیں کرتے ہیں جو کام آپ کر رہے ہیں. میں نے آج سے 8 سال پہلے بھی کہا تھا اسی علاقے میں کہ سارے لوگ شکیل شاداب کو سننے کے بعد اٹھ کے بھاگنے لگے. میں نے کہا یہ ضلع بستی ہے، جس ضلع بستی میں دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی ہے، جہاں امر ڈوبھا جیسا علاقہ ہے، جہاں اوجھا گنج ہے، یہ سب وہ علاقے ہیں جو ساری دنیا میں مشہور ہیں، بے شک اور سارے ہندوستان کے بچے یہاں آ کے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور تم لوگوں نے اپنی اداؤں سے بتا دیا کہ تم لوگ علیمیہ جمدہ شاہی کے فیض سے محروم ہو. تم لوگ بہار راجستھان کے بچے آ کے یہاں پڑھتے ہیں، مگر تم لوگ محروم ہو اس سے. یہ کام وہ کرتا ہے جہاں علیمیہ نہیں ہے، جہاں امر ڈوبھا نہیں ہے، جہاں حضور فقیہ ملت نہیں ہے، بے شک واہ جہاں حضور نظام الدین صاحب صوفی صاحب جیسے بزرگ نہیں ہیں، جہاں حضور شیخ عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں، وہاں کرتے ہیں لوگ. لیکن جہاں اس قدر علمی ادارے ہوں، وہاں لوگوں کو اپنی اداؤں سے بتا دینا چاہیے کہ ہم نعت پاک نظم وغیرہ سنتے ہیں، مگر چونکہ یہ علمی حلقہ ہے اس لیے علم کی بات زیادہ سنتے ہیں. تو تم لوگوں کو یہاں نعت سننے کے بعد بیٹھنا چاہیے اور گفتگو سننی چاہیے. ہاں اگر مہینے میں ایک بار آتا ہوں تو ٹھیک ہے، بہت سن چکے ہیں آپ. جب میں زندگی میں پہلی بار آیا ہوں تو کم سے کم 2-4-10 منٹ بیٹھ کے سن تو لیتے کہ یہ مولانا بولتا کیا ہے، یہ بولنا کیا چاہتا ہے. مگر وہی ظاہر سی بات ہے، جہالت تو بڑھتی جا رہی ہے. ابھی یہاں کر لوگ قوالوں کی طرح آ کر کے کھڑے ہو کے ننگے سر، جو لڑکا بھی لڑائی کر رہا تھا کہے نعت پڑھنے کے لیے آیا ہے، وہ لڑکا گم ہو گیا، چلا گیا، وہ ننگے سر بیٹھا ہوا تھا. یہ دینی مجلس ہے، یہ ہوا ہوٹنگ نہیں چلی گئی یہاں. اس لیے آج کل میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل کی نعت خوانی کیا ہوتی ہے، وہ قوال وہاں
وہ بھی اللہ رسول کی بات بولتا ہے، حمد اور نعت پڑھتا ہے، مگر وہاں میوزیم اور ہارمونیم ہے، اور یہاں جلسے میں اس قوالی کو ہارمونیم کے بغیر قوالی اور وہاں ہارمونیم کے ساتھ قوالی، اور اس میں فرق ہی کیا ہے؟ وہ تو کہیے کہ بہت دنوں کے بعد محمد علی بھائی اسٹیج پہ آئے اور انہوں نے ایک شائستگی کا ایک لہجہ لوگوں کو دیا اور قاعدے سے نعت پڑھ رہے ہیں. بس ان کو بھی صرف ایک نعت پڑھنی ہے، بس 1 گھنٹے والا کام نہ کریں، جو کام پہلے اجمل اور بیکل سب کیا کرتے تھے. علامہ ارشد صاحب کی علیہ الرحمہ کی 4 گھنٹے کی تقریر ہوتی تھی اور اجمل اور بیکل صاحب 5 اشعار پڑھتے تھے، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا. نعت ہوتی تھی ان کی، بس 5 اشعار پڑھے، سارا مجمع کہتا تھا 1 شعر اور سنا دیجیے. یہ ہمارے سید صاحب قبلہ ہیں. تو محمد علی بھائی ایک نیا لہجہ ابھر کے ہندوستان میں آئے ہیں بہت قاعدے سے. ابھی جھارکھنڈ گیا تھا میں 5 دن پہلے، وہاں کہہ رہا تھا کہ محمد علی بھائی جب شروع میں اسٹیج پر آئے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ابھی آسمان سے اترے ہیں، ابھی بالکل مدینہ پاک سے تازہ آئے ہیں. لیکن وہ بھی دھیرے دھیرے شروع کر دیے دوسرے لوگوں کی طرح. حالانکہ میں اس سے متفق نہیں ہوں، مگر انہوں نے کہا یہ ان کی بات تھی. بس ایک نعت پڑھیں 10 سے 20 منٹ، سارا مجمع اچھلتا رہے، کودتا رہے، لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، تو ایک نعت پڑھیں. اور اس سے کیا ہوگا کہ بس دینی اہمیت بھی نہیں گھٹے گی. اب نعت سنے سب چلے گئے، تقریر ہی نہیں سن پایا وہ میں کیا بولنے والا ہوں، میں کیا بولنے جا رہا ہوں. خیر چلیے، جو گئے سو گئے، جو بیٹھے ہیں میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ رات کے 2 بجے آپ بیٹھ کر دین سننا چاہتے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں، بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سبھوں کو سرکار دو جہاں علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے، آمین دنیا اور آخرت دونوں جہان کی ہریالی اور خوشحالی عطا فرمائے. یہ دستار بندی کا جلسہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس دستار بندی کے حوالے سے آج پوری دنیا میں قرآن شریف کے حوالے سے ایک بات بولی جاتی ہے کہ یہ کتاب پرانی ہے، 1500 سال پہلے کی، جو اس دنیا میں نازل ہوئی. اور اس کتاب میں لڑانے اور جھگڑا کرنے کی باتیں ہیں. لوگ عام طور پر کہتے ہیں اس کتاب سے ٹیررزم پھیلتا ہے، دہشت گردی پھیلتی ہے، اس کتاب سے نفرتوں کا ماحول پیدا ہوتا ہے. جیسے اسی اتر پردیش کا ایک بدتمیز مرتد، گستاخ رسول، کافر، اس نے قرآن پاک کی 28 آیتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس میں نفرت کی باتیں ہیں. وہ کبھی 26 کبھی 28 سے بولتا رہتا ہے. وہ ان آیتوں کے حوالے سے اس میں جہاد کی، لڑائی جھگڑے کی بات کی گئی. تو خیر وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. اب وہ ایسی حالت میں وہ ہے کہ قرآن کے خلاف بولنے والا دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا. وہ گیا تھا نرسنگ آنند کی گود میں بیٹھنے کے لیے تاکہ مجھ کو وہاں عزت ملے، کرسی ملے، لیکن وہاں بھی عزت نہیں ملی. دھتکار کے اس کتے کو وہاں سے نکال دیا گیا. ابھی اتراکھنڈ کے جیل میں بند ہے. موت اور حیات کے بیچ میں وہ جھوج رہا ہے اور بول رہا ہے کہ میری بیوی چھوٹی، میرے بچے چھوٹے، میرا سارا سنسار چھوٹا، اب میں خودکشی کر کے مر جاؤں گا. تجھے مر ہی جانا چاہیے، تمہارے لیے جگہ نہیں ہے، تمہارے لیے جہنم تیار ہے، جاؤ وہاں کی خطرناک آگ میں جلتے رہو. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ وہ زبردست لعنت اس پر برسی کے جیتے جی وہ بے سہارا ہو گیا، ذلیل اور رسوا ہو گیا اور سب سے الگ تھلگ پڑ گیا. یہ تاکہ دنیا والا جان لے کہ قرآن کے خلاف جو بھی زبان کھولتا ہے اس کا حشر ایسا ہی ہوتا ہے. اور جو قرآن کریم پہ خطاب کرتا ہے اور جو قرآن کریم کی عظمت بیان کرتا ہے، جو قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، وہ کوئی احمد رضا خاں ہو تو پھر ساری دنیا کے افق پہ چھا کے بتا دیتا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. آج ساری دنیا میں نہ کسی ڈاکٹر راجندر پرساد کی دھوم ہے، نہ کسی گاندھی نہرو کی دھوم ہے. گاندھی کی دھوم انڈیا میں ہے چونکہ وہ راشٹر پتا تھے. نہرو کی دھوم انڈیا میں ہے چونکہ وہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے. ڈاکٹر راجندر پرساد کی دھوم انڈیا میں ہے چونکہ ہندوستان کے پہلے راشٹرپتی تھے. ابوالکلام آزاد کی دھوم انڈیا میں ہے چونکہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ایجوکیشن منسٹر تھے.
مگر بریلی میں پیدا ہونے والے اس خان کی دھوم آج پوری دنیا میں ہے کہ آکسفورڈ میں، برکلی میں، صاحب کیمبرج میں، آسٹریلیا یونیورسٹی میں، آج دنیا کی ساری درسگاہوں میں، یونیورسٹیز میں ان پہ تھیسس لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کا رہنے والا آج امریکہ میں تحقیق کا موضوع بنا ہوا ہے۔ ہندوستان میں پیدا ہونے والا آج آکسفورڈ اور کیمبرج میں ریسرچ کا ایک ٹاپک بنا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو بھی زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے۔ آج وہ خطیب جسے کوئی جانتا تک نہیں تھا، آج وہ اتر پردیش کے کسی گاؤں سے نکل کر سارے ہندوستان کے افق پہ چھا گئے، گلی گلی کوچے کوچے میں ان کا نام ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب وہ رامائن بولتا تو کبھی یہ عزت نہ ملتی، گرنتھ بولتا کبھی یہ عزت نہ ملتی، فزکس کیمسٹری بایولوجی بولتا کبھی یہ عزت نہیں ملتی۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ جو بھی اس پر بولتا ہے وہ زمین سے اٹھ کے عزت کے آسمان پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور بعض کو پست کر دیتا ہے۔ کس کو بلند کرتا ہے؟ جو اس قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس کی آیتوں میں غور و فکر کرتا ہے اور قرآن کریم پر عمل کرتا ہے، اور اس قرآن کریم کی دعوت کو لے کے وہ سماج میں کھڑا ہوتا ہے، دوسروں تک قرآن کریم کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اس کے بارے میں حضور نے کہا کہ اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو اللہ بلند کر دیتا ہے، اور جو قرآن کریم کو گھر میں رکھتا ہے، اس پہ دھول جما دیتا ہے، سال میں کبھی کبھار شب برات کے موقع پہ اٹھا کے بغیر سمجھے بوجھے چند آیتوں اور سورتوں کو پڑھ لیتا ہے، نہ قرآن پاک کی تعلیم کا اثر کوئی اس کے وجود میں، نہ اس کے کلچر میں، نہ اس کے گھر کے شادی بیاہ عقیقہ ختنہ ولیمہ میں، نہ اس کی زیست میں، نہ اس کی حیات میں، نہ اس کی موت میں، سارا کلچر قرآن سے ہٹ کے ہو تو قرآن اس کے گھر میں کیوں نہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت سے محروم کر دیتا ہے۔ آج ساری دنیا میں یہ بات بولی جا رہی ہے کہ عزت مسلمانوں کے لیے ہے تو عزت ہے کہاں؟ حکومت مسلمانوں کے لیے ہے تو حکومت ہے کہاں؟ یہ صرف ایک کہنے سننے کی باتیں ہیں۔ جو کچھ بھی کہی جا رہی ہیں صرف اس لیے کہ میں نے قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانا۔ سب سے پہلی بات آپ یہ جان لیں کہ اس مدرسے کے پرانگن میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اس مدرسے کا ہی ایک گفٹ اور مدرسے کا ایک تحفہ ہے ساری دنیا کو کہ آج دنیا میں یونیورسٹیز قائم ہیں، دنیا میں اسکول قائم ہیں، دنیا میں مکاتب قائم ہیں۔ چونکہ آج سے 1000 سال پہلے نہ امریکہ نام کا کوئی ملک دنیا میں تھا، نہ جواہر لال نہرو نام کی کوئی یونیورسٹی ہندوستان میں تھی، ایک بھی یونیورسٹی دنیا میں نہیں تھی، نہ آکسفورڈ تھا نہ کیمبرج تھی۔ یہ ساری یونیورسٹی کی تاریخ 600 سے 500 سال کے بھیتر کی، اور ہندوستان میں جتنی درسگاہ ہیں، چاہے بنارس ہندو یونیورسٹی ہوں، چاہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہوں، چاہے کوئی درسگاہ ہو، یہ ساری درسگاہوں کی تاریخ بھی ٹھیک 250 سال کے اندر کی ہے۔ اور 250 سال پہلے ہندوستان میں کوئی بہت مرکزی یونیورسٹی نہیں تھی، اور 500-600 سال پہلے ہندوستان میں کوئی کالج نہیں تھا، اور 1000 سال پہلے تو نہ فزکس کا نام تھا، نہ کیمسٹری کا نام تھا، نہ جغرافی کا نام تھا، نہ جو آج کل فیکلٹیز ہیں اس کا کوئی نام تھا۔ یونیورسٹیز نہیں تھی اس وقت میں، مگر مدرسہ تھا۔ اس وقت یہ مدرسہ اسپین میں چلتا تھا، یہ مدرسہ مسجد نبوی کے اندر چلتا تھا۔ وہ اصحاب صفہ جو تھے چبوترے پہ بیٹھ کر وہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تھے، حضور کی حدیث سنتے تھے، اس پر تبصرہ کرتے تھے اور ایک دوسرے کو پہنچاتے تھے۔ تو جو لوگ آج مدرسے کو آتنک کا اڈا کہتے ہیں وہ جان لیں کہ جس وقت کالج نہیں تھا مدرسہ تھا، جس وقت یونیورسٹی نہیں تھی اس وقت مدرسہ تھا، جس وقت دنیا میں کوئی مکتب نہیں تھا اس وقت مدرسہ تھا، اور جس وقت امریکہ نام کا کوئی ملک
نہیں تھا، اس وقت مدینہ تھا، اور مدینے کا وہ چبوترا تھا جس چبوترے سے دنیا والوں کو علم کی طاقت کا ہنر سکھایا جا رہا تھا کہ آج امریکہ بولتا ہے نالج از پاور، نالج از لائٹ۔ شکشا شکتی کا نام ہے اور شکشا پرکاش کا نام ہے، علم طاقت کا نام ہے اور علم روشنی کا نام ہے۔ تو امریکہ 1000 سال کے اندر ان کی تاریخ، اور ابھی وہ بولا ہے کہ علم طاقت ہے، سارے لوگ طاقت حاصل کریں، علم ایک روشنی ہے، سارے لوگ اس علم سے اپنے بال بچوں کو آراستہ کریں۔ آج سب سے زیادہ جس بات پہ زور دیا جاتا ہے وہ ہے نالج، وہ ہے شکشا، وہ ہے علم۔ سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ تعلیم نے امریکہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، علم نے چائنا جیسے بدھسٹوں کے چھوٹے سے ملک کو پوری دنیا کی منڈیوں میں اپنا مال پھیلانے کا موقع عطا کر دیا۔ جاپان جسے 70 سال پہلے امریکہ نے 2 زبردست بم گرا کے ناگاساکی اور ہیروشیما کو تباہ و برباد کیا، آج وہ جاپان امریکہ سے زیادہ مضبوط ملک، اور وہاں کا پروڈکٹس، وہاں کی پیداوار دنیا کی ساری منڈیوں میں سب سے عزت کی نگاہوں سے جس کو دیکھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں آج سے 400 سال پہلے انجینئر کوئی نہیں ملتا تھا، لیکن آج لاکھوں انجینئر پیدا کرنے والا ہندوستان امریکہ، یورپ اور گلف کنٹریز میں اپنی ایک پہچان بنا چکا ہے۔ تو آج یہ کہنا کہ شکشا شکتی کا نام، آج یہ کہنا کہ علم طاقت کا نام ہے، کوئی عجوبہ چیز نہیں ہے۔ تعجب کی بات تو ہے کہ یہ نعرہ بھی نہ کسی آئنسٹائن نے دیا ہے، نہ کسی گاندھی اور نہرو کا دیا ہوا ہے کہ علم طاقت کا نام ہے۔ لوگ سب بول رہے ہیں، مودی جی بھی کہتے ہیں کہ شکشا گرہن کریں، شکشا شکتی کا نام۔ صاحب اتر پردیش کے پنڈت جی بھی کہتے ہیں کہ سارے لوگ شکشا گرہن کریں، شکشا شکتی کا نام۔ بہار کے نتیش جی بھی کہتے ہیں کہ شکشا گرہن کریں، شکشا شکتی کا نام۔ چائنا اور جاپان کے سربراہ بھی کہتے ہیں کہ شکشا گرہن کریں، شکشا شکتی کا نام۔ مگر جس اسلام کو لوگ بدنام کرنا چاہتے ہیں، جس قرآن کریم کی طرف آتنکواد اور ٹیررزم کو لوگ منسوب کرنا چاہتے ہیں، وہ حقیقت میں تعصب کا چشمہ نگاہوں سے ہٹا کر وہ مطالعہ کریں کہ کون ہے جو سب سے پہلے علم کو طاقت سے تشبیہ دی ہے، کس نے ہے جو سب سے پہلے علم کو روشنی کہا ہے، کس نے سب سے پہلے علم حاصل کرنے پہ اتنا زور دیا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو، کس نے سب سے زیادہ زور دیا کہ علم حاصل کرو چاہے دور دراز علاقے میں جا کے پڑھنا کیوں نہ پڑے۔ کون کہا تھا اطلب العلم فلو کان بالصین، obtain knowledge whether you find it in China۔ کس نے کہا تھا اطلب العلم من المہد الی الحد، acquire knowledge from the cradle to the grave۔ کس نے کہا تھا knowledge is power, knowledge is light۔ حقیقت کی نگاہوں سے دیکھا جائے اس وقت امریکہ کا پتہ تک نہیں تھا، چائنا جاپان کا وجود تھا مگر ایک گھسا پٹا، ایک غریبوں اور کمزوروں کا ایک ملک تھا۔ ہندوستان ایک ملک تھا جہاں کی چتاؤں پہ ان کے پتی کو جلا کے راکھ کیا، پتنی کو جلا کے راکھ کیا جاتا تھا، جہالت کی انتہا تھی، جہاں نہانے پہ پابندی تھی جس یورپ میں، آج وہاں علم کی دھوم دھام۔ کس نے اس زمانے میں جبکہ مہینوں لوگ نہاتے تک نہیں تھے، اس زمانے میں جبکہ پتی کی چتا پہ پتنی کو جلا کے مارا جاتا تھا، اس زمانے میں جب ایک مکتب ایک اسکول تک دنیا میں موجود نہیں تھا، کس نے کہا 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں پیغمبر اعظم علیہ السلام نے ایک اسلوگن، ایک نعرہ دیا تھا کہ اطلب العلم، علم حاصل کر، من المہد الی الحد، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، فإن العلم نور، اس لیے کہ علم نور کا نام ہے، فإن العلم قوت، اس لیے کہ علم طاقت کا نام ہے۔ آج ببانگے دہل مسلمان یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ گاندھی نہرو بعد میں علم کو طاقت کہا ہے، امریکہ یورپ بعد میں علم کو طاقت کہا گیا ہے، مگر مدینہ کی اس حکومت نے 1400 سال پہلے علم کو طاقت کہا، علم کو روشنی کا نام دیا۔ آئنسٹائن نے آج علم کو روشنی کہا، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 سال پہلے علم کو طاقت اور علم کو نور سے تشبیہ دی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا قیامت تک جہاں علم پہ خطاب کرتی رہے گی، علم کو طاقت کہتی رہے گی، علم کو روشنی کا نام دیتی رہے گی، شکشا کو شکتی اور پرکاش کہتی رہے گی، زبان چاہے کسی کی ہو مگر یہ نعرہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، اور قیامت تک یہ احسان مصطفیٰ کا مانا جاتا رہے گا۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جلسے دستار بندی۔ ہمارے بچے علم حاصل نہ کریں، وہ غلام ہو جائیں امیتابھ کا،
وہ صاحب یہود و نصارہ کا پاؤں دھو کے پیئیں، یہود و نصارہ کی چپل ڈھوئیں، یہودیوں کی طرح چہرہ بنا کے یہودی بن جائے، کرسچنوں کی طرح برتھ ڈے پارٹی اپنے بیٹے کا منا کے وہ کرسچنوں کا غلام بن جائے، یہ فلم کے اسٹار کی نقل کرے، ان کے گلے میں ہو سکری، ان کے ہاتھ میں ہو دھاگا، ان کا چہرہ ہو یہودیوں جیسا، ان کا لباس ہو کافروں جیسا، ان کی شادی پارٹی ہو یہودیوں جیسی، ان کے بیٹوں کا برتھ ڈے پارٹی ہو یہودیوں جیسا، یہ مصطفیٰ سے ہٹ کر یہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں، یہ تو ممکن ہے، مگر اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گا، اس لیے کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ کو کسی سے کبھی کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ آج بھی کوئی خطرہ ہے، نہ قیامت تک ہمیشہ کوئی خطرہ رہے گا، تو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اسلام، اور یہ ہم اور تم بولتے ہو کہ اسلام کا مستقبل خطرے میں ہے، مگر امریکہ کا یورپ کا ایک ویگیانک اپنی زبان میں کہتا ہے کہ چونکہ علم اور ریسرچ کے تعلق سے دنیا کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اسلام سے مانوس ہے، وہ کہتا ہے کہ آنے والے 100 سال کے بعد اگر یورپ بر اعظم کے تمام ممالک میں، یورپ بر اعظم کے تمام گاؤں میں اگر کوئی مذہب حکومتی مذہب ہوگا، وہ کون سا مذہب ہوگا؟ ہمارا بچہ لچا لفنگا، قوالی سننے والا، سنیما سننے والا، نماز نہیں پڑھنے والا، گٹکا کھانے والا، سگریٹ اور بیڑی سے شوق رکھنے والا، 24 گھنٹے موبائل چلانے والا، بدتمیز مسجد میں بھی موبائل نہیں چھوڑتا ہے، جلسے میں بھی موبائل نہیں چھوڑتا ہے، اسٹیج پہ بھی موبائل نہیں چھوڑتا ہے، اور اپنے خانقاہوں میں موبائل نہیں چھوڑتا ہے۔ یہودیوں کے پاس 10 لاکھ کا موبائل رہتا ہے مگر اس کا موبائل جیب میں رہتا ہے، یہودیوں کے بیٹے کے پاس 5 لاکھ کا موبائل رہتا ہے مگر اس کا موبائل جیب میں رہتا ہے، مگر ہمارے لچے بیٹے، لفنگے بیٹے، جو نہ داروغہ ہے، جو نہ IAS آفیسر ہے، جو نہ IPS آفیسر ہے، جو نہ سائنٹسٹ ہے، نہ ویگیانک ہے، میں کہتا ہوں ہاں 24 گھنٹے موبائل تم چلاتا ہے، اگر DM بن جاؤ تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اگر تم 5 گھنٹے موبائل چلاتا ہے، IPS آفیسر بن جاؤ تو ہندوستان کے 40 کروڑ مسلمانوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ چوری کا موبائل 10,000 میں خرید کے 24 گھنٹے اس پہ کیا گچر کرتا ہے، تو تم داروغہ تو بن نہیں پایا، البتہ ٹیچر کلاس کا ایک آدمی بن گیا، جوکر بن گیا، چھوکری باز بن گیا، گٹکا خور بن گیا، سماج کے لیے بوجھ بن گیا۔ ظاہر سی بات ہے جو سرکار کی تعلیم سے ہٹے گا وہ یہودیوں کے ٹھوکر میں چلا جائے گا، اور جو مصطفیٰ سے قریب ہوگا، سنتوں سے قریب ہوگا، جو قرآن کو سینے سے لگائے گا، جو اپنے گھر میں مصطفی کلچر کو نافذ کرے گا، وہ اگر غریب دیہاتی ہو تو اللہ اسے یورپ کا حاکم بنا دے گا، جاپان کا حاکم بنا دے گا۔ اللہ عزت دینے کو تیار ہے، حکومت دینے کو تیار ہے، پہلے تو محمدی بن جا، غربت کا کیا روتا ہے، حکومت یہاں ملے گی، جنت وہاں ملے گی۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جلسے دستار بندی۔ جوکروں کی طرف فلم میں ایکٹر میرا بچہ بن رہا ہے، قرآن ہی نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن ہی نہیں سن رہا ہے، یہ گٹکا کھا کر کے اپنی انرجی کو گما رہا ہے۔ ابھی 25 سال کی جوانی ہے، مولانا کے پاس پہنچ گیا کہ شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، کوئی معجون کوئی ٹکیا ہو تو بتا دے۔ 25 سال کی جوانی میں تو دیوار کو آدمی توڑ دے گا۔ 25 سال کی جوانی جس نے کسی لڑکی کا منہ نہ دیکھا ہو، جس نے کوئی اقلام بازی نہ کی ہو، جس نے کوئی مشت زنی نہ کی ہو، ایسی اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جو قدرتی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دیوار کو توڑ دے۔ یہاں تو 25 سال کا جوان کال چپک گیا ہے، آنکھیں اندر دھس گئی ہے، بالکل ہل رہا ہے۔ اس کی فضول گوئی نے، فضول بدعملی نے اس کو تباہ کیا، فضول گوئی نے اسے تباہ کیا، گٹکا خوری نے اسے تباہ کیا، اسے سنیما دیکھنے نے تباہ کیا، اسے مشت زنی نے تباہ کیا۔ میں بوڑھوں سے کیا امید رکھوں؟ یہ بوڑھے تو 1 درجن بیماری سے گرست ہیں، اس کی تو آنکھ کی بینائی ختم ہے، اس کے تو دانت ٹوٹ رہے ہیں ہر 2 مہینے کے بعد، اس کے تو گھٹنے میں درد ہے، اس کے تو ٹخنے میں درد ہے۔ بڑھاپے کا مطلب ہے 1 درجن بیماری کا گھر، بچپن کا مطلب ہے گلی ڈنڈا کھیلنا، بچپن کا مطلب ہے کھیل تماشا کرنا، بچے میں آدمی غیر مکلف ہوتا ہے، یعنی مکلف نہیں ہوتا، وہ نماز روزہ کچھ نہ پڑھے، بچہ ہے۔ جوان ہونے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، روزہ فرض ہوتا ہے، شریعت کے قوانین جوان ہونے کے بعد بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بچپن تو کھیل کا، بڑھاپا بیماری کا، یہ گرین پیریڈ ہے جوانی کا، جس میں دنیا بھی سجانا ہے، آخرت بھی سجانی ہے، جنت جانے
का काम भी करना है और दुनिया में इज्जत के साथ रहने के लिए एक शानदार जॉब भी करनी है, बाल बच्चों को इज्जत से खिलाने के लिए एक भारी भारी आमदनी भी करनी है, यानी पढ़ना भी है, नौकरी भी करनी है, बिजनेस भी करना है। इसी पीरियड में केस मुकदमा, कचहरी, कोर्ट, शादी ब्याह, बाल बच्चे पैदा करना, उसे पढ़ाना, घर मकान दुकान जमीन जगह गाड़ी छकड़ा, सारा काम इसी जवानी पे डिपेंड है। ताकि मैं दुनिया में खुशहाल रहूं, उसके लिए हमें 8-8 घंटे मेहनत करना पड़ेगा, उसे हमें 16-16 घंटे पढ़ के लड़के लोगों से नौकरी लेनी पड़ेगी। ये कौन तुमसे कहा कि हिंदुस्तान दूसरों का मुल्क है? यहाँ नौकरी मुसलमानों को नहीं मिलती है और मुसलमानों को यहाँ गुटखा खाने की आजादी है। खूब 24 घंटे गुटखा खा के जवानी में आग लगा दो और ये दूसरों का मुल्क है, नौकरी उसको मिलेगी। आज 9 साल से हिंदुस्तान में चल रहा है मोदी जी का, हिंदुस्तान में सिक्का चल रहा है अमीर शाह का, आज कई साल से उत्तर प्रदेश में सिक्का चल रहा है पंडित जी का। यानी आज लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में यही 3, 4, 5 लोग हैं जो हिंदुस्तान को संचालन कर रहे हैं और यही लोग कहते हैं इस्लाम के दुश्मन है। ये इस्लाम के दुश्मन इसी इनके जमाने में हर साल 25 से लेकर 30 मुसलमान बच्चे IAS ऑफिसर बन रहे हैं, IPS ऑफिसर बन रहे हैं। पिछले बार रिजल्ट निकला था 30 मुसलमान के बच्चे DM बने थे। उससे पहले रिजल्ट निकला था इसी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरसगाह अल-जामिअतुल अशरफिया का एक प्रोडक्ट मौलाना शाहिद मिसबाही, उन्होंने IAS निकाल के आज हमारे बिहार में IAS ऑफिसर बन के एक लग्जरियस लाइफ गुजार रहा है, एक शानदार सी जिंदगी, एक मदरसे का प्रोडक्ट। इसी पीरियड में, जिस पीरियड में तू कहता यहाँ नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलती नहीं है, नौकरी लड़ के ली जाती है। मुकाबला कहते ही उसे है जहां मुकाबला हो, जहां कोई 10-12 घंटे पढ़ रहा हो तो वहां 14 घंटे पढ़, जहां कोई 14 घंटे पढ़ रहा हो वहां तू 18 घंटे पढ़। पढ़ने के जमाने में सर के बाल उड़ने लगे, उड़ने दे। पढ़ने के जमाने में पांव की चप्पल घिसती हो, घिस जाने दे। पढ़ने के जमाने में एक बार भी परहेज का वक्त कपड़ा ना पहनना पड़े, मत पहन। पहनने के जमाने में दाल रोटी खानी पड़े तू खा, लेकिन मुकाबला कर उसका। अगर वह 14 घंटे पढ़ता तू 18 घंटे पढ़, तो फिर मुकाबले में जब तू कामयाब हो जाएगा तो अच्छा पहनता रहेगा, अच्छा खाता रहेगा, अच्छी चप्पल पहनता रहेगा, अच्छी पगड़ी पहनता रहेगा। पहले मेहनत तो कर, ये क्रीम जवानी को तालीम के पीछे लगा दे। कौन बोलता नौकरी नहीं मिलती? इस बार अभी रिजल्ट निकला IAS का 8-10 दिन पहले, इसमें 7वां स्थान कश्मीर का एक मुसलमान का बच्चा निकाला है और शुरू के 4 स्थान वह गैर मुस्लिम की बेटियों ने निकाला है। चूंकि बेटों को तो गुटखा खाने से फुर्सत नहीं है, उसको तो छोकरीबाजी करने से फुर्सत नहीं है, उसको तो 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठकर सिनेमा देखने से फुर्सत नहीं है, उसको तो जोकरी और मार धाड़ करने से फुर्सत नहीं है। ये बताएं कि किस कदर विडंबना और अलमिया है हिंदुस्तान का कि इतने सारे जवान मर्द को अल्लाह ने औरतों के मुकाबले में दोगुनी ताकत दिया है। ये रात में 12-12 घंटे जाग कर पढ़ सकता है, ये सरहद पे दुश्मनों से लड़ सकता है, ये हवाई जहाज से लेकर ट्रेन तक उड़ा सकता है और चला सकता है। ये 6-6 महीने पानी में गोता लगाकर वहां के हीरे जवाहरात से वह रोशनास हो सकता है। वह फजाओं में 10-10 महीने तक मुअल्लक रहकर वह कायनात की मिस्ट्री से वह बाखबर हो सकता है। ये मर्दों को अल्लाह ने ताकत उनके मुकाबले में ज्यादा दी है। मर्दों को दाढ़ियां दी है ताकि ज्यादा ताकतवर ये बने, मर्दों के चमड़े को मोटा किया है ताकि ताकतवर ये ज्यादा बने। औरतों को अल्लाह ने दाढ़ी नहीं दी है ताकि वह शौहर की आंखों की जीनत बनी रहे, वो अपने बाल बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ताकत का खजाना बनी रहे, वो अपने घर को जन्नत नुमा बनाने के लिए वो अपने घरेलू खातून बनी रहे। आज यहाँ मर्द है जो चूड़ी पहनते हैं, मर्द है जो लंबा बाल रख के रबड़ बांध रहे, ये औरतें हैं जो जींस और टी-शर्ट पहन के मैदान में आ रही है। जिसको एक तमाचा मारा जाए वह चार करवट जाएगी और जो साहब हमारी आवाज को सह नहीं सकती, जिसके पास रात में 5 घंटे दरवाजे पर खड़े रहकर फैक्ट्री के दरवाजे पर वह तरबानी नहीं कर सकती, वह हवाई जहाज फ्लाई नहीं कर सकती, वह ट्रेन चला नहीं सकती, वह ट्रक का ड्राइवर नहीं बन सकती, तो उसको चेहरे पे दाढ़ी इसलिए नहीं है ताकि वह घर में रहे, अपने बच्चों को सलाहुद्दीन बनाए, अपने बच्चों को औरंगजेब बनाए, अपने बच्चों को गाजी बनाए, अपने बच्चों को शहीद बनाए, अपने बच्चों को DM बनाए। पर नहीं तो अगर दोनों बराबर है तो एक साल मर्द बच्चा पैदा करे, एक साल औरत बच्चा पैदा करे, एक साल मर्द दूध पिलाए, एक साल औरतें दूध पिलाए। ऐसा जब नहीं हो सकता है, ना हिंदुइज्म में हो सकता है, ना क्रिश्चियनिटी में हो सकता है, ना जूस में हो सकता है, नहीं हो सकता है तो फिर नारियों को मर्द के समान को बोलता है। और जहां तक इज्जत का सवाल है, इज्जत जो इस्लाम ने दिया है वह कोई दूसरा मजहब नारियों को दे ही नहीं सकता है। इस्लाम ने तो कहा है कि नारियों के पांव के नीचे जन्नत है। इस्लाम ने तो कहा है माँ का चेहरा देखो तो हज मबरूर का अज्र मिलता है। माँ ने इस्लाम जो कहा है माँ की पेशानी चूम लो तो जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिलता है। इस्लाम ने तो बाप की
जायदाद में औरतों को हिस्सा दिलाया, इस्लाम ने शौहर की प्रॉपर्टी में औरत को हिस्सा दिलाया, इस्लाम ने बेटों की जायदाद में माँ को हिस्सा दिलाया। एक औरतों को 3 जगहों से जो धनहीन थी उसे धनवान इस्लाम ने बनाया कि शौहर मरे तो उसकी प्रॉपर्टी में औरत को हिस्सा मिलेगा, बेटा मरे तो उसकी प्रॉपर्टी में माँ को हिस्सा मिलेगा, और अगर बाप मरे तो उसकी जायदाद में बेटियों को हिस्सा मिलेगा। औरतों को 3 तरफ से दौलतों में हिस्सेदार बना के इस्लाम ने उसे मालदार बनाया। औरतों को चूंकि वह कमजोर है इसलिए मोटी चादर डाल दी ताकि कोई कोचिंग सेंटर में कोई दरिंदा इस पर हमला न करे, स्कूल में कोई दरिंदा इस पर हमला न करे, रास्ता चलते कोई लुच्चा लफंगा इस पर हमला न करे। ये पर्दे की चीजें छुपी रहे, वरना जब से जींस और टी शर्ट चला है आए दिन अखबारात में खबरें आ रही है कि औरतों का किडनैप हुआ, 10 बच्चों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया, फिर बेइज्जती से बचने के लिए उसको ज़ब्ह कर दिया। यानी पहले किडनैप करना, फिर गैंग रेप करना, इज्तिमाई आबरूरेजी, उसके बाद फिर उसको कत्ल कर देना। हिंदुस्तान का कोई अखबार इस तरह की खबरों से खाली नहीं है, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, यानी हर अखबार में इस तरह की खबरें रोजाना छप रही है। और ये नारियों के सम्मान की बात कर रहे हैं, नारियों की इज्जत की बातें कर रहे हैं, नारियां पढ़ेंगी और नारियां पढ़ेंगी, बस ये खोखला नारा दे रहे हैं। या रोजाना नारियों की आबरू लूट रही है, यहाँ रोजाना औरतों को ज़ब्ह किया जा रहा है, जहेज न लाने की वजह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। मुसलमान फैमिली में अगर कोई एक कैरोसिन छिड़कर आग लगाने की बात होती है तो करोड़ों में कोई एक केस 10 साल के बाद आता है, और वहां रोजाना खबरें पढ़ने को मिल रही है, फला हरिजन ने ऐसा किया, फला गैर मुस्लिम के घर में ऐसा हो गया। तो अपना दामन छाप के देख ले, कहां औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, औरतों के सम्मान को नोचा जा रहा है। यहाँ तो इस्लाम ने औरतों को पर्दा इसीलिए दिया है ताकि इसकी आबरू बची रहे। ये किस कदर ताज्जुब की बात है, रेलवे स्टेशन पे मैं नमाज पढ़ता हूँ तो कहते हैं नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद नहीं है ये। उसी स्टेशन पर एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से चिपक रहा है, चूमा चाटी कर रहा है, कोई खबीस बोलने वाला नहीं है कि इस तरह की हरकतों से क्या मैसेज समाज में जाएगा, एक गलत मैसेज जा रहा है, लोग देखेंगे उस पर क्या गुजरेगा, एक गलत काम यहाँ क्यों कर रहा है, कोई नहीं बोलता। नमाज पढ़ो, अपने खालिक को सजदा करो। ये सालिम कहते हैं नमाज पढ़ने की जगह नहीं है और वहां चूमा चाटी करो, कोई बोलने वाला नहीं है। ये आदमियत है या हैवानियत है, ये शराफत है या शरारत है। एक स्कूल में एक लड़की चड्डी पहन के आ रही है, चपरासी भी मजे लेके देख रहा है, प्रोफेसर भी मजे लेके देख रहा है, टीचर भी मजे लेके देख रहा है, किरानी भी मजे लेकर देख रहा है, स्कूल के सारे अफराद मजे लेके देख रहा है। उसी माहौल में अगर एक लड़की निकाब पहन के आ रही है तो उसको कहता है ये भूतनी है, ये चुड़ैल है, ये आतंकवादियों की बेटी है, बदतमीज वहां नंगी आ रही है, कोई बोलने वाला नहीं। और एक औरत सर से लेकर पांव तक हिजाब में आ रही है तो उसको सारे लोग नोच रहे हैं। कौन कहा कि शराफत बढ़ रही है, इल्म बढ़ रहा है, इल्म घट रहा है, शरारत बढ़ रही है, लोग हैवान बन रहे। मुस्तफा ने सच कहा था 1400 साल पहले, तुम जाओ अकूलो अक्सर साले का ज़मान, एक वक्त ऐसा आएगा अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। शरारत यही है कि निकाब अच्छा नहीं लगता और चड्डी अच्छी लगती है। क्या तू उसकी परवाह कर रहा है, क्या उसको खातिर में ला रहा है, क्या उसकी बात से सुनने के बाद तू नर्वस हो रहा है? ऐसा कभी नहीं होगा कि इन लुच्चे लफंगों को इज्जत मिले और अल्लाह के परस्तारों को जिल्लत का मुंह देखना पड़े। सिर्फ तो मुस्तफा का गुलाम बन, मुस्तफा की तहजीब को गले से लगा ले। ये छुछंदर और बंदर के पुजारी धाराशाही होंगे, मुस्तफा का मानने वाला गुलाम सारी दुनिया में इज्जत पाएगा, यहाँ हुकूमत पाएगा, यहाँ इज्जत पाएगा। जब मरेगा वहां काफिरों को जहन्नम की आग मिलेगी, मुसलमानों को मुस्तफा का पोस मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। इन लुच्चों लफंगों की क्या बात सुनेगा? ये अगर बोले इस्लाम खतरे में उसकी बात मान लेगा तुम, ये बोले इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में इसकी बात मान लेगा तुम? नहीं माने हो, इसलिए इनके पास न कोई इज्जत है, न कोई बकार है, न इसके पास कोई अकीदा है, न कोई इसके पास कोई शराफत है। ये बताए मैं नमाज पढ़ता हूं तो बोलता है नमाज ना पढ़े, और उसके बाद वहीं पर बैठ कर कोई चूमा चाटी कर रहा, कोई बोलने वाला नहीं है। आखिर जमाने में इंसानों की अक्लें छीन ली जाएंगी। आज मुसलमानों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसको शऊर से जीना है। मुसलमानों के बच्चों को आज मेहनत से इल्म हासिल करना होगा और दुनिया को बताना होगा तुमने जिस जहालत को इल्म समझा वो इल्म नहीं है। इल्म शराफत का नाम है, इल्म आदियत का नाम है, इल्म मॉरलिटी का नाम है। हमारे कुछ लोग हैं जो उसका झोला ढोते हैं, उसका पांव धो के पीते हैं और ये बोलते हैं कि उसका मुल्क है, यहाँ तो उसका नाज उठाना पड़ेगा। किसने तुमको कहा कि उसका मुल्क है? यह तुम्हारे बाप दादाओं का मुल्क है। 1200 साल पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा, जिनसे कब्रिस्तान भरा पड़ा है, ये उनका मुल्क है। उनका अगर
मुल्क है तो मेरा भी मुल्क है, उनका मुल्क है तो मेरा भी मुल्क है, और उनका बादशाह तो जुज़वी और प्रोफेशनल होता है, मेरा बादशाह गरीब नवाज तो 800 साल से अजमेर में रह के सारे भारत को चला रहा है। इसे किसका मुल्क है? दूसरों का नहीं है। ये मुल्क तो ख्वाजा गरीब नवाज का है, ख्वाजा गरीब नवाज के साथियों का है, और तुम कैसे बोला कि दूसरों का मुल्क है? मुकाबला सख्त है, पढ़ाई बढ़ा दे, मुकाबला सख्त है, जागना बढ़ा दे, मुकाबला सख्त है, हिम्मत बढ़ा दे, मुकाबला सख्त है, कपड़े और मकान और गाड़ी की तरफ नहीं बल्कि शिक्षा और इल्म की तरफ जा। 10 बीघा जमीन है, सबको बेच डाल, अपने बच्चों को डीएम बना, अपने बच्चों को एसपी बना, अपने बच्चों को प्रोबेशनरी ऑफिसर बना, अपने बच्चों को जुडिशरी में भेज, अपने बच्चों को लॉयर बना, अपने बच्चों को जज बना, अपने बच्चों को हिंदुस्तान के सारे दफातर में भेज दे, ताकि दुश्मन मजबूर हो जाए तुम्हें रखने पर तुम्हारी क्वालिटी को देखकर। क्वालिटी बढ़ा दे, वो डिग्री धारी मत बन, वह झोला छाप डॉक्टर मत बन, बल्कि डिग्री धारी भी मत बन। अभी क्वालिटी को देखा जाता है, क्वालिटी जिसके पास रहे वह ना चाह करके भी तेरे बच्चों को डीएम बनाता है। तो उसे हिंदुस्तान चलाने के लिए आदमी चाहिए, और आदमी वही जिसके पास एबिलिटी मौजूद हो। वो तो कमजोरों की कहानी है कि दूसरों का मुल्क है। ये लोग अमेरिका से लौट के आते हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ, ये बोले कि अमेरिका की सड़कें हिंदुस्तान से अच्छी हैं, चलेगा। वह बोले कि जापान की बिल्डिंग हिंदुस्तान की बिल्डिंग से ज्यादा फ्लैगबोस है, वो चलेगा। वह हिंदुस्तान से ज्यादा अमेरिका यूरोप की तारीफ करे, चलेगा। और मेरा बच्चा अमेरिका से घूम के आने के बाद नहीं बोलता वहां के व्हाइट हाउस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हाउस से ज्यादा खूबसूरत है, वहां की सड़कें हिंदुस्तान से ज्यादा अच्छी चिकनी है। नहीं, वो यही बोलता है हिंदुस्तान है, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रिटेन से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नॉर्वे कनाडा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम फख्र से कहते हैं इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं, इसकी ये गुलसिता हमारा। तो हमने वो नारा दिया था, आज वो नारा हर शख्स की जबान पे है। हमारे बाप दादाओं ने हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से प्यार करना सिखाया है। 2-4 लुच्चे लफंगों को देखकर ये नहीं बोला जाएगा कि इस्लाम खतरे में है। हिंदुस्तान दिल्ली की कोई बंदरिया इस्लाम और पैगंबर इस्लाम और कुरान के खिलाफ बोले तो उसको सुनने के बाद तुम नर्वस मत हो जाना कि मुसलमान बनने की सजा ये मिल रही है। वो हमारे पैगंबर और हमारे कुरान के खिलाफ वो अपमानित जुमले इस्तेमाल कर रहा है। उन जोकरों की बात पे कान ही नहीं धरना है। वह सिर्फ चंद रोटी खाने के लिए कुत्ता जैसे भौंकता है, उसी तरह 2 रोटी खाने, कुर्सी हासिल करने, सीट लेने, एमएलए बनने, प्रधान बनने, विधायक सांसद बनने के लिए वह भौंकता है। और कोई मुद्दा अगर नहीं मिलता है तो एक इस्लाम मुद्दा मिलता है, एक कुरान उसको मुद्दा मिलता है। उस कुरान और इस्लाम के खिलाफ जहर उगल के अपने ग्रुप में वह हीरो बनना चाहता है, वरना उसकी इल्मी लियाकत का तो ये आलम है। एक जुमला कायदे से उसको हिंदी नहीं आती है, एक जुमला कायदे से अंग्रेजी नहीं आती है, वो चला है इस्लाम के खिलाफ जबान खोलने। मैं बताऊंगा ठहर कर कि यूरोप का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्यों कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के भीतर पूरे यूरोप बर्रे आजम में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। बर्नार्ड शॉ ने कहा, कोई मौलवी नहीं बोला है, कोई पीर साहब नहीं बोला, हम लोग तो बोलते रहते हैं, मगर ये जुमला एक क्रिश्चियन का है जो यूरोप में आज से 50 साल पहले जिसकी मौत हो गई और जिससे हजरत मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी अलैहिर्रहमा से एक जबरदस्त मुनाजरा हुआ था। उससे इस्लाम से इतना इंप्रेस्ड हुआ कि उसने दुनिया का जायजा लेने के बाद ये जुमला अपनी जबान से निकाला था। ऐसा महसूस हो रहा है कि जो इल्म की धमक, साइंसी तहकीक, कुरान पाक की तालीम की रोशनी जो दुनिया भर में फैल रही है, उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त इस्लाम का इतना खूबसूरत वक्त आ रहा है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप जो दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता बर्रे आजम है, उन्होंने कहा था यूरोप बर्रे आजम में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। जरा ठहर के मैं इस पर तबसरा करता हूँ, पहले हवाई बातें नहीं बल्कि मैं अपने पढ़े लिखे बच्चों को बावर में करा दूं कि कुरान करीम नफरत फैलाता है या इल्म का उजाला फैलाता है। कुरान करीम ने जिस तहकीकात को दुनिया के सामने रखा है, आज यूरोप का दानिश्वर देख के दंग रह रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया का और साहब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का प्रोफेसर वह कलमा पढ़े बगैर नहीं रह रहा है। वह कौन सी आयत थी जिसको के
आइलैंड की का एक जबरदस्त वैज्ञानिक, उसको देखने के बाद वो कलमा पढ़े बगैर नहीं रह सका। वह कौन सी आयत थी जिसको कोस्टो नामी फ्रांस का एक जबरदस्त साइंटिस्ट, उन्होंने जिसको देखने के बाद पूरी भरी मजलिस में सबको गवाह बनाकर वह इस्लाम से करीब हुआ। मैं लुच्चो लफंगों की बात से मैं नर्वस हो जाऊं या उन जैसे चमकते साइंसदानों को इस्लाम लाने को देखने के बाद मैं अपना सीना फख्र से चौड़ा करो कि मेरा कुरान अजायबात का मजमुआ है, मेरा कुरान हकायक का मजमुआ है। हुजूर ने कहा था ला तनक़ज़ी अजाइबहु, यानी इसके अजायबात कभी खत्म ना होंगे। और दूसरी अल्लाह फरमाता है एक जगह कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। अल्लाह कहता है we shall show our portents in the horizons and in themselves that it will be manifest that it is true। अल्लाह कहता मैं अपनी निशानी दिखाऊंगा, इतना दिखाऊंगा दुनिया भर में ताकि सारे लोग जान जाएं कि ये कुरान हक है, यह इस्लाम हक है, अल्लाह हक है और मुस्तफा हक है। मुसलमानों का यकीन कमजोर हो रहा है। इसको बोला जाए कि औलाद को ज़बह मत कर, अल्लाह रोजी देने वाला है, इसको यकीन ही नहीं होता। ये काफिरों का देखा देखी 2 बच्चे के बाद या तो कंडोम का इस्तेमाल करता है या तो माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल करता है, क्योंकि यकीन ही कमजोर हो गया। क़यामत की निशानी है कि आखिर जमाने में इल्म दुनिया से उठा लिया जाएगा। वयुरफाउल इल्म, इल्म दुनिया से उठ जाएगा आखिर जमाने में। जब इल्म उठ जाएगा तो फिर जहालत जाहिर होगी। कोई एक आलिम नहीं मिलेगा दुनिया में जो फराइज के मसले को बता दे। 2 भाई आपस में लड़ेंगे, इतनी प्रॉपर्टी मेरा बाप छोड़ के मरा है और हम 2 भाई हैं, एक बहन है, हमारी एक फूफी है, हमारी एक फूफी है, हमारा एक भतीजा है, और किसमें जायदाद तकसीम कैसे होगी कोई नहीं बता पाएगा। एक मुत्तकी फकीह आलिम भी हो वली भी हो ढूंढने से नहीं मिलेगा। आया है हदीस में कि मोटा ताजा जानवर लेकर एक शख्स मुत्तकी फकीह की तलाश में निकलेगा, उसका जानवर दुबला पतला हो जाएगा लेकिन कोई मुत्तकी फकीह नहीं मिलेगा। किसी के पास इल्म होगा तो तकवा नहीं होगा, नमाज की पाबंदी नहीं होगी। किसी के पास नमाज की पाबंदी तकवा होगा तो इल्म की कमी रहेगी, यानी उसके पास इल्म का चिराग नहीं रहेगा। इस तरीके से दुनिया में हालात किसी हद तक इसी तरह के पैदा हो गए हैं। एक तरफ इल्म है तो तकवा नहीं है, एक तरफ नमाज रोजे की पाबंदी है तो इल्म नहीं है। और धीरे धीरे इल्म दुनिया से उठेगा तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे, वो जाहिल गलत मसला बताएगा, खुद भी गुमराह होगा और कौम उसकी सारी गुमराह होती जाएगी। और जब इल्म उठा लिया जाएगा तो उस जमाने में आदमी जाहिलों से बदतर हरकत करेगा, जानवरों से बदतर हरकत करेगा और फिर शराब कसरत से पी जाएगी। ये क़यामत की निशानी है कि इल्म उठा लिया जाएगा। ज़िनाकारी जाहिर होगी, यानी इस कदर आदमी के बदन में ज़िना शहवत कूट कूट कर भर दी जाएगी कि 3 साल का बच्चा भी ऐसी बातें बोलेगा जिनकी बातों से शहवत टपकेगी। 4 साल का बच्चा भी ऐसा काम गली में करेगा जिसको देखने के बाद एक 24 साल का जवान शर्मा जाएगा। और फिर चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो बेपढ़ा लिखा आदमी, वो अपने दफ्तर में बैठकर, मदरसे में बैठकर, स्कूल कॉलेज में बैठकर, हर जगहों पे बैठकर सिर्फ शहवत की बात करेगा। ये मर्द पैदा एक जुज़वी काम था, एक पार्शियल काम था कि मर्द औरत का रिश्ता बड़ा घना होता है। बाकी रही बात ये ज़बान पे हमेशा चौक चौराहे पे गली कूचे में जानवरों की तरह सिर्फ शहवत का चर्चा करना, क्योंकि आदमी की शहवत गालिब आ जाएगी। इसके दिल और दिमाग पे सिर्फ एक ही जुनून चढ़ जाएगा। वह मकान बनाना उतनी बड़ी कामयाबी नहीं समझेगा जितनी बड़ी कामयाबी समाज की एक लड़की को हासिल करना समझेगा। 24 घंटे नेट चलाना, किसी लड़की से चैटिंग करना, फिर उसके बाद उसके लिए पागल हो जाना और बाप माँ से कहना मेरी शादी वही होगी और मैं उसी के लिए पैदा हुआ हूँ, और वो भी बोलती मैं इसी के लिए पैदा हुई हूँ। समाज के लोग कहते हैं कि अरे वो लड़की तो यूज्ड है, उसके 3 हमल हॉस्पिटल में गिराए जा चुके हैं, उसको तो मैं जान रहा हूँ। ये बोलता नहीं वो तो अनटच्ड है, वह तो मेरे लिए पैदा हुई है। शहवत अंधा बना देती है, शहवत आदमी को भले बुरे की तमीज खोने पर मजबूर कर देती है। जब इल्म घटेगा तो शहवत बढ़ेगी। 4 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, मेरी आंखें समाज में गली कूचों में इस तरह की हरकतों को देखती हैं और मैं इस हदीस पाक को पढ़ता हूँ किस कदर हुजूर ने 1400 साल पहले जिस जमाने में मर्द ताकतवर होते थे, जिस जमाने में शहवतों का इतना चर्चा नहीं था, जिस जमाने में आला कामयाबी हासिल करना यही उनका मतमहे नजर था, जिस जमाने में जिहाद करना, 30-30 साल अपने गांव छोड़कर सरहद पे रह के इस्लाम बचाना, ये वहां के मर्दों का कमाल था।
اور وہاں کی عورتیں اس قدر صابرہ شاکرہ، اس قدر زبردست طاقت والی ہوتی تھی کہ شوہر کی جدائی میں 30 سال گزار دیتی، نہ نظر بہکتی تھی، نہ زبان بہکتی تھی، نہ ان کے ہاتھ بہکتے تھے، نہ ان کے پاؤں بہکتے تھے۔ یہاں پہ 10 دن کی جدائی میں یہ سارا تماشا ہوتا ہے کہ نگاہیں بھی آزاد ہیں، زبان بھی آزاد ہے، آنکھ بھی آزاد ہے، ہاتھ اور پاؤں بھی آزاد ہیں۔ الجامع الاشرفیہ کا ماہنامہ اشرفہ کی رپورٹ کے مطابق یعنی جو شوہر باہر سے ودیش سے گھر آیا ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے، ابھی گئے ہوئے ایک دن نہیں ہوا ہے کہ دوسرے دن ہوٹل سے فون آتا ہے کہ کسٹمر آیا ہے، اور جب یہ دوسرے ہی دن جو شوہر کے ساتھ 1 مہینہ رہ چکی ہے، شوہر آ چکا ہے، پر ہوٹل پہنچ جاتی ہے۔ جب ہوٹل کے کمرے میں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے وہاں کوئی کسٹمر نہیں، ان کا شوہر وہاں موجود ہے۔ جس شوہر کو جانکاری ملی تھی ان کی بیوی ایسی کرتی ہے، میری فلائٹ کے بہانے وہ اسی ہوٹل میں جا کے انہوں نے ٹھہرا۔ جب اس کی بیوی آئی آنکھیں 4 ہوئی تھی، بتائیں کہ پاؤں تلے کی زمین کھسک گئی ہوگی، کیسا منظر رہا ہوگا کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ کر 2-4-10 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں بلکہ ایک دن پہلے شوہر گھر سے نکلا ہے اور دوسرے ہی دن ہوٹل سے فون آیا ہے اور وہاں جا رہی ہے۔ کس قدر دنیا کہاں جا رہی ہے، شہوتوں کا ماحول۔ نقاب پہننے کے بعد بھی نقاب چست ایسا کہ آپ سر سے لے کے پاؤں تک سارے اعضاء جھلکے، دوپٹہ اوڑھنے کے بعد بال کی سیاہی جھلکے۔ یہ نقاب نہیں، ایک رسم کی پابندی ہے۔ یہ موٹی چادر اوڑھنے کو اسلام نے کہا ہے، ڈھیلی ڈھالی چادر، موٹی چادر جس سے بال کی سیاہی نہ جھلکے، بدن کا کوئی انگ نہ جھلکے۔ نقاب پہننا، یہ پردہ، یہ برقع پہننا ضروری نہیں ہے، اسلام نے موٹی چادر رکھنے کو کہا ہے، ایسی موٹی چادر جو سر سے لے کے پاؤں تک سارے پارٹس کو ڈھانپ لے۔ اور یہاں تو طرح طرح کے تراش خراش کے برقعے نکل رہے جس کے پہننے کے بعد آدمی کے اعضاء باہر سے جھل گئے۔ شرم اور حیا سب سے بڑی چیز ہے۔ اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی کو بتائے کہ پردے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسلام نے پردہ کیوں فرض کیا ہے۔ شہوت کوٹ کوٹ کے بھری جا رہی ہے، نقاب کے اندر موبائل ہے، اس مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھی ہیں، اس موبائل سے چیٹنگ شروع ہے۔ مسجد نبوی تو وہ مسجد نبوی ہے جہاں آدمی کو 8 دن رہنے کے درمیان 1 لاکھ درود پڑھنا چاہیے۔ ہمارے حجاج کرام وہاں جاتے ہیں، 8 دن مدینے میں رہتے ہیں، 40 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں نے ابھی 5 دن پہلے حاجیوں کے ایک جلسے میں نے کہا تھا موبائل یہی توڑ دے، یہی پھینک دے موبائل کو اور بغیر موبائل کے جائیں، جیسے کہ احرام باندھ لیا، کفن پہن لیا، اب کفن پہن کے آپ سوچ لیں کہ میں مر گیا، گھر والوں کے میں مر گیا ہوں۔ وہاں سے فون مت کرنا، اگر تم نے وہاں سے فون کیا اور بولا کہ بیٹی کی طبیعت خراب ہے اور تم آ بھی نہیں پاؤ گے اور وہاں مسجد نبی میں درود پڑھنے میں من نہیں لگے گا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں دل نہیں لگے گا، میدان عرفات میں گناہوں کی معافی کی بھیک مانگنے کا جملہ زبان پہ جاری نہیں ہوگا، ایک ہی جملہ ہوگا، یا اللہ میرے بچے کو اچھا کر دے۔ اگر بتا تو وہاں مر گیا اور گھر والے کو فون ہو گیا تو گھر والا وہاں جا کے تیری ڈیڈ باڈی کو ہندوستان لا بھی نہیں سکے گا اور یہاں سے فوری جا بھی نہیں پائے گا، تو وہ بولے گا گھر والا وہی مرنا اچھی بات ہے، وہی بقی شریف میں دفن ہو جا، وہی جنت المالا میں دفن ہو جا۔ جب مرنا آخری بات ہے، اس کے بعد جو مصیبتیں ہیں وہ تو ہلکی مصیبتیں ہیں، مرنے کے بعد تم یہاں فوری حد چھوڑ کے آ نہیں سکتے اور یہ تیرا بیٹا وہاں نہیں جا سکتا۔ پھر یہ 24 گھنٹے گٹر گٹر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ روضہ رسول پہ فون سے بات، عرفات کے میدان میں فون سے بات، مزدلفہ میں فون سے بات، مینا میں فون سے بات، پیسہ ہوا فوراً ٹکٹ کٹوایا چلا گیا اور احترام سے دل خالی ہے۔ جہاں جنید اور بایزید جیسے بزرگ سانس روک کر حاضری دیتے ہوں تاکہ سانس چلنے کی آواز بھی مصطفیٰ کے روضے پہ بلند نہ ہونے پائے، اور وہاں سے جائے کہ موبائل لے کر اپنے گھر والوں سے کہنا کہ میں حضور کے روضے پہ کھڑا ہوں، تم وہاں سے سلام کر۔ بدتمیز، تم حضور کے روضے کے سامنے کھڑا ہے، تم سلام نہیں پڑھ رہا ہے اور تیری بیوی وہاں سے 5000 کلومیٹر دور ہے، اس سے سلام پڑھا رہا ہے۔ پہلے تم سلام پڑھنے کا طریقہ سیکھ لے۔ جہاں سانس کی آواز بلند نہ ہو وہاں فون کی آواز بلند کر رہا ہے۔ اور کچھ کمینے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پیٹھ کو روضہ رسول کی طرف کر کے وہ ایسے سیلفی لیتے ہیں، اسے تو جانا ہی نہیں تھا، مر جانا تھا۔ پیسوں کی فراوانی ہوئی اور چلتے بنے، نہ آداب سیکھا، نہ حرم کی زمین کا احترام سیکھا، نہ مولانا کے پاس جا کے 2-4 مہینے میں جا کے لبیک ہی کہنا نہیں سیکھا اور طواف کے درمیان کی دعائیں نہیں سیکھا، حج میں کتنے فرائض واجبات اور سنن ہیں اس کو نہیں سیکھا، پیسہ ہوا ویزا لگایا اور چل دیا اور وہاں دوسروں سے کہتے ہیں کہ لبیک پڑھوا دیجئے اور میرا احرام بندھوا دیجئے، چلے جا رہے ہیں۔ کمائی جیسے
जैसी की तैसी, वहां गए आइस क्रीम खाना और मोबाइल चलाना। हरमैन की एक नेकी 1 लाख के बराबर है, मस्जिद हराम की तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। वह मस्जिद हराम, दुनिया की दूसरी मस्जिदों में दुनिया की बात करना हराम है, और दुनिया की दूसरी मस्जिदों में जो दुनिया की बात करता हो उसकी नेकियों को इस तरह से ये दुनिया की बातें खा जाती हैं जिस तरह से आग को लकड़ियां खा जाती हैं। आपके गांव की मस्जिद, इस मस्जिद में दुनिया की बात करना हराम, और नेकियों को खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है। और मस्जिद हराम जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, जिस मस्जिद का एक सजदा 1 लाख के बराबर, जहां का एक रुकू 1 लाख के बराबर, उस मस्जिद हराम में घंटों घंटों फोन पे चिपका रहना, फोन से बातें करना, और वह हालत एहराम में फोटो लेकर व्हाट्सएप पे डाल देना, और उसको यूट्यूब के जरिए पूरे अपने दोस्तों में शेयर करना, उसको फेसबुक के जरिए। बदतमीज, बेहतर था कि तू नहीं जाता वहां जाके, ये क्या खरबों गुना तुमने मोल ले लिया। जो हिंदुस्तान में हराम था तो था ही, वो वहां जाके 1 लाख गुना ज्यादा गुना तुम करके आ गए। इसलिए हदीस में एक पढ़ता हूं आपके सामने, जब नापाक कमाई, नाजायज कमाई, झूठ बोल के जो माल कमाया हो, जो दूसरों की जमीन पर गासिबाना कब्जा करके माल कमाया हो, नाजायज कमाई, और फिर नाजायज नियत है। नियत यह है कि चाहे जन्नत मिले ना मिले, अभी 50 गाड़ी आगे पीछे लखनऊ छोड़ने के लिए जाए, 50 माला गले में रहे, अगर कोई दोस्त नहीं आया तो जिंदगी भर गिरा बांध के रखना है। मैं हज को जा रहा था, तुम मिलने नहीं आया, वो मेरा समझी मिलने नहीं आया, वो हज से वापस आने के बाद उसी गिरह को बांधे रहता है। जबकि शैतान को कंकड़ी मारने का मतलब है वह दुनिया को मार दिया, दुनिया को पांव के नीचे रौंद दिया, तमाम नाजायज ख्वाहिशात को पांव के नीचे रौंद दिया। नहीं, वहां से आके गिरह बांध के लाता है। अब सुनिए वो हदीस पाक, जब एक शख्स नाजायज कमाई से झूठ बोलकर जो माल जमा किया हो, गलत तरीके से उसको लेके जब हज को जाता है, और वह इहराम का कपड़ा पहन करके 2 रकअत नमाज पढ़ के जब वह लब्बैक कहता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, तो फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, ला लब्बैक वला सादैक ज़ादुका हरामुन व हज्जुका मरदूदुन। यानी आवाज आती है आसमान से, आवाज लगाने वाला एक आवाज लगाता है, एक फरिश्ता, जाओ जाओ, तेरा सफर का खर्चा वो हराम का था, और तेरा लब्बैक कहना कबूल नहीं है, तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया गया है। दुनिया में तो हज का ढंडोरा पीटा गया, खूब आइसक्रीम खा के और फोन से बात करके आए। तुम्हें तो समझना चाहिए, तो कफन पहन लिया तो अब मैं चलो मर जाऊं वहां, तो मेरी नस्लें मेरी मौत पे रश्क करेंगी कि मेरा दादा, मेरा परदादा, मेरा बाप हरम की जमीन में मौत पाया, तो नस्लें फख्र करेंगी। और अगर तू वापस आ गया वहां से हरमैन शरीफैन की बरकतें हासिल करके, तो जब तू 40 दिन के बाद अपने बच्चों से मिलेगा, ऐसा लगेगा जैसे दूसरी जिंदगी अल्लाह ने अता कर दी। उस वक्त मिलने में जो मजा आएगा, ये फोन से बात कर करके इस सफर को क्यों बेबरकत बनाता है। जो जायज कमाई से, दुनिया को मालूम हो या ना हो, हज मुझ पर फर्ज है, मुझको अदा करना है। नमाज फर्ज है, मैं 5 वक्त मस्जिद नमाज पढ़ने जाता हूँ। कौन माला पहनाया जाता है, कौन जुलूस निकलता है। रोजा फर्ज है, हर साल 1 से लेकर 30 रोजे तक मैं रखता हूँ। कौन माला पहनाता है, कौन 2-4 गाड़ी से मुझको सी ऑफ करता है। ज़कात फर्ज है, हर साल पाई पाई का हिसाब निकाल कर, चाहे 1 करोड़ है तो 2.5 लाख, 1 लाख है तो 2500, जितने हैं उतनी की ज़कात मैंने निकाल दी। मेरा माल पाक और मेरा दिल भी पाक, चूंकि ज़कात का मकसद ही होता है कि तेरे दिल में माल न रहे, तेरे दिल में माल देने वाले की मोहब्बत रहे। और ज़कात का मकसद ये होता है कि माल पाक हो जाए, तो माल भी पाक और दिल भी पाक। अगर ज़कात नहीं निकली तो माल भी नापाक। 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात, 2.5 लाख में 2 लाख निकाला, 50,000 नहीं निकाला, सारा माल नापाक। 1 रुपया भी ज़कात का अगर रह गया असल माल में, इल्ला अफसदत हो, सारे माल को तबाह बर्बाद करके रख देता है। यहाँ तो 1 करोड़ है, 2.5 लाख निकालने में सीने में दर्द होता है, इसलिए ज़कात फर्ज है ताकि सीने का वह दर्द खत्म हो जाए, वह सीने में माल न रहे, माल देने वाला रहे, वह माल देने वाले की मोहब्बत रहे, और यह माल भी पाक हो जाए। तो फर्ज था मैंने निकाला, रोजा फर्ज था मैंने रख लिया, ज़कात फर्ज थी मैंने निकाल दिया, नमाज फर्ज है 5 टाइम में पढ़ने जाता हूँ। उसी तरह हज फर्ज है, ये चारों पिलर है। हज फर्ज हुआ, जैसे हज फर्ज हुआ, बाप पर फर्ज हो तो वो अदा करे, माँ पे फर्ज है तो वो अदा करे, बेटे पर हज फर्ज है तो वो पहले अदा करे। ये जहालत वाली बात ना बोले कि माँ बाप हज किया नहीं और बेटा जा रहा है, ये जहालत है, ये जहालत और लाइल्मी की बात है। बेटा साहिब इस्तिताअत है, वो हज करे, माँ बाप को भी साथ लेके जाए तो नूर अला नूर। अगर उनके पैसे नहीं है तो खुद अपना हज करना फर्ज है। अगर वो माँ बाप को भेज रहा है तो उसका फर्ज अदा ना होगा, और कोई भी फर्ज नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि फर्ज
अदा ना करे, इसलिए माँ बाप को साथ में लेके जाओ, उतना पैसा है तो ठीक है, वरना अपना हज करे। माँ बाप के पास पैसे हैं तो वो हज करे। ऐसा नहीं कि बेटा गया माँ बाप को छोड़ गया, ये जहालत की बात है। जैसे कोई पाक कमाई से पाक इरादे से हज को जा रहा है, मगर जो उससे बड़ा मालदार उस शहर में है, गांव में है, वह बोलता है ये 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। यहाँ एक जबरदस्त घटिया किस्म की बात है, जहालत और शरारत की बात है। आलिमों से दूरियों ने, मदरसों से दूरियों ने, और जहालत की हालत में चंद सिक्के हो गए। दिल्ली पंजाब बंबई जाके कहीं ठेकेदारी किया, कुछ माल हो गया, छोटा सा घर बनाया, आल्टो की कार खरीद ली, उसके बाद फिर अब वह फिरौन बन के बैठा है। ये मौलाना मौलवी मदरसा क्या है? ये सब तो चंद सिक्के कमाते हैं मस्जिद में इमामत करके। मैं तो एक टेंडर लेता हूँ, 10 लाख रुपए की कमाई हमारी होती है। बेहतर था कि तू गरीब रहता, कम से कम मौलाना को इज्जत से सलाम तो करता, कम से कम 5 टाइम मस्जिद तो जाता, कम से कम तेरा दिल नर्म तो रहता, कम से कम गरीबी की वजह से तेरे आंख से आंसू के कतरे तो निकलते, कम से कम तू अपने आप को कुछ भी नहीं समझता। ये कौन सा पैसा तुमने कमा लिया कि आलिमों की तौहीन, मस्जिद की तौहीन, मदरसे की तौहीन और फिर फराइज़ व वाजिबात की तौहीन, और तुमने दुनिया को इज्जत देना शुरू किया। और फिर कोई मुत्तकी हो, तकवा जिसके पास हो, तकवा के बजाय तुमने पैसे को वैल्यू देना शुरू किया। पैसा अगर किसी शराबी के पास हो, उसके लिए तू खड़ा हो जाता है। किसी के सीने में कुरान हदीस का इल्म हो तो तू ये पसंद करता है कि ये मुझको सलाम करे, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं और मैं पैसे देकर इनको मस्जिद में चंदा देकर मैं इनकी तनख्वाह का इंतजाम करता हूँ। बेहतर था कि गरीब रहता। ना अहलों के लिए पैसा एक मुसीबत है, पैसों की वजह से तबाह बर्बाद हो रहे हैं। पैसा नहीं, अब वो दूसरा आदमी हज को चला गया, अल्लाह का डर था, 10 साल से पैसे जमा किया, वो हज को जा रहा है, ये डींगे मारता है। 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। मैं कहता हूं 900 चूहा क्यों? कौन बोला तुमको 900 चूहा? 900 करोड़ चूहा भी खा के कोई हज को जाए, ये हदीस पाक सुन ले सीना फट जाएगा। हुजूर कहते हैं कि जब कोई शख्स ये कहता है ये इतना बड़ा मुजरिम है कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा, अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा, तो अल्लाह कहता है मन अंत, तू कौन है कहने वाला कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा? जाओ जाओ, मैंने इनको माफ किया, अब तुझको जहन्नम की आग में झोंक दिया। कौन है तुम बोलने वाला? अल्लाह बख्शिश करने वाला है, वो तो 99 कातिल को माफ करने वाला है। अल्लाह वो दिल देखता है कि दिल में कितनी मोहब्बत, कितना खौफ अल्लाह का है। नमाज, रोज़े, हज, ज़कात फराइज़ व वाजिबात फराइज़ हैं, इसको तो अता करना ही है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, और नमाज फर्ज आज़म है, नमाज का छोड़ना भी गुनाह आज़म है। नमाज छोड़ने के बाद अगर कोई बोले तो अल्लाह तो दिल देखता है, उसकी झूठी बातें ही मानी जाएगी। फराइज़ व वाजिबात की अदायगी के बाद अगर वह बोलता है मैं तो बज़ाहिर सजदा करता हूँ, कबूल करना अल्लाह का काम है, मैं तो सिर्फ कानून पे अमल करता हूँ, और वह रोता रहता इलाही मेरा काम था बज़ाहिर कानून पे अमल करना, मैं नहाया धोया, कपड़ा मेरा पाक, जगह पाक, बदन पाक, मैंने ज़ाहिरी तौर पर क़िरात सीख ली, रुकू और सजदा कर रहा हूँ, बाकी कबूल करना तेरा काम है। वो बोले फजल इलाही से कबूल होगा, वो बोले अल्लाह के करम से कबूल होगा। यहाँ शराब पीता है और बातें इस तरह की डींगे मारता है। 900 करोड़ चूहा खा के अगर कोई हज को जाए, अगर अल्लाह ने हज कबूल कर लिया, उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, तो तेरा सीना क्यों फटता है? तू क्यों चिढ़ रहा है? तू क्यों जल रहा है? 900 करोड़ चूहा खा के जाए, अगर हज कबूल हो गया तो हदीस में आया है, उलमा कराम से पूछ ले, सरकार फरमाते हैं हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है, बाकी कुछ नहीं। यानी जिसका हज कबूल हो गया वो हज मबरूर, उसका बदला सिर्फ जन्नत है, सिर्फ जन्नत, बाकी कुछ नहीं, हज मबरूर का बदला। और सुन वो हदीस, इसमें हुजूर ने फरमाया था मन हज वलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन फलततहु उम्मु। हुजूर कहते हैं जिसने हज किया और दौरान हज जिसने कोई बुराई नहीं की, कोई बेहयाई का काम नहीं किया, तो ऐसे लौटता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। ये हदीस पाक तो पढ़ता नहीं, जहालत की वजह से 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। इसी तरह की बेशुमार शरारतें हैं जो हमारी जबान से जाहिर होती रहती है, और हम एक दूसरे के सामने इस तरह के जुमले बोलते रहते हैं। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है, वाजिब वाजिब है, फर्ज को फर्ज के खाने में रखना है, नफल को नफल के खाने में रखना है, वाजिब को वाजिब के खाने में रखना है। ऐसा नहीं कि नफल को फर्ज बना लेना है और फर्ज को नफल समझ लेना है, ऐसा नहीं होता है। जरा गौर से सुनिए ये बातें, मैं वहां विराम देता हूं, उसके बाद में कुरान के अजायबात पे तबसरा करता हूं कि किस तरह सारी दुनिया में इस
साइंटिफिक वर्ल्ड में किस तरह कुरान के अजायबात वाज़े हो रहे हैं। ये लुच्चे लफंगों की वजह से हमारे बच्चे नर्वस ना बिल्कुल ना हो। दौलत कमाना कमाल नहीं, मकान बनाना कमाल नहीं, कुरान पाक पढ़ना कमाल है, कुरान पाक पे अमल करना कमाल है, झोपड़ी में रह के ईमान बचाना कमाल है। वरना हम क्या दौलत कमा पाएंगे। हिंदुस्तान का एक काफिर 100 करोड़ की कार खरीदा है, उसके पहिया की कीमत है 10 करोड़ रुपए। मैं अपना घर बेच दूं, 10 बीघा जमीन बेच दूं, मैं अपनी डिजायर बेच दूं, फिर भी उसके एक पहिया की कीमत के बराबर ये नहीं हो पाएंगे। इतनी दौलतें अल्लाह ने काफिरों को दी हैं, इतनी दौलतें उसके पास है। उसके पास जो मकान है 36 मंजिला मकान जिसकी कीमत कई हजार करोड़ रुपए है, जिसने न्यूयॉर्क अमेरिका में, जिसने लंदन में उन्होंने 4000 करोड़ का होटल खरीदा हो। कितनी दौलतें उसके पास है। लेकिन हमारे पास कितनी दौलतें हैं उसके मुकाबले में कुछ नहीं, जीरो में हो। मुसलमानों में 10 एक मुट्ठी भर 10 आदमी के पास अगर अरबों खरबों की दौलत है, अगर यूसुफ लुलू मॉल वाला का लखनऊ का अगर वो हजारों करोड़ का मालिक है, तो कितने लोग 40 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों में इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं। और वहां तो कदम कदम पे ऐसे लोग हैं जिनकी कार की कीमत 10 करोड़ रुपए है, जिनके मकान की कीमत कई हजार करोड़ रुपए है। बेतहाशा दौलत है। अगर तुम आलिम से दूर रहे, मुमकिन है उसका मकान तेरे ईमान को लूट ले। अगर तुम दिल में इल्म दोस्ती से अलग रहा, मुमकिन है उसकी कार तेरे ईमान को छीन ले कि इनके पास इतनी कार है, ये काफिर होके तो फिर मैं मुसलमान हूं, मुसलमान होने की ये सजा मिल रही है। तब एक साइकिल भी मेरे पास ठीक से नहीं, बुलेट भी नहीं है, उनके पास 10-10 करोड़ की कारें हैं, तो सीना हिल जाएगा। इसीलिए आलिमों की सोहबत में रहना, दीनी गुफ्तगू सुनना, रोजाना किताबों का मुताला करना इसलिए जरूरी करार दिया गया है। बुजुर्गों ने कहा है जो मौलवी 10 साल 20 साल पढ़ने के बाद 3 दिन लगातार किताबों का मुताला छोड़ दे, उनका दिल मरने लगता है, उनका दिल बुझने लगता है, वह भी जाहिलों की तरफ बोलने लगता है जिस तरह आजकल लोग बोल रहे हैं। 20 साल मदरसे में पढ़े और यहां से चले गए JNU, वहां दाढ़ी भी छोटी हो गई और वहां सर से टोपी भी उतर गई, क्योंकि अब ये साहब ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और उसी JNU का लड़का जो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, वह MSc करते हुए क्लास में वो बहादुर तक दाढ़ी भी रख रहा है, वो क्लास के टाइम में पैंट शर्ट, उसके बाद वो पंजाबी पायजामा पहन रहा है और वो कुरान पाक का अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ रहा है और उसके दिल में इस्लाम का दर्द पैदा हो रहा है। और ये 20 साल पढ़ने के बाद वहां गया, 20 दिन भी नहीं हुआ कि चेहरे की दाढ़ी भी छोटी हो गई, असर से टोपी भी उतर गई। इसका मतलब है कि किताब पढ़ा, वो किताब दिल में नहीं उतरी है। सिर्फ जबानी तौर पर पढ़ना कमाल नहीं है, बल्कि उसे दिल में जगह देना, उस पर गौर फिक्र करना, यह कमाल है। बुजुर्गों ने कहा है कि मुताला मरते दम तक करते रहना है। जमीन फौरन सूख जाती है जब 2-4 दिन तेज धूप होती है, जमीन मर जाती है। उसको दोबारा जिंदा करने के लिए बारिश मतलूब है, चाहे अंदर से पानी डालें या फिर आसमान का पानी पड़े, तब वह खेत जिंदा होता है, तब दूसरी फसल लगती है। 2-4 दिन की धूप जमीन को मार देती है, जलाकर राख कर देती है। उसी तरह 2-4 दिन गुंडों की सोहबत, लुच्चों की सोहबत, लफंगों की सोहबत, बेनमाजी की सोहबत, दुनियादारों की सोहबत, यह दिल को मार देती है, यह दिल को जला के राख कर देती है। इसलिए हुजूर ने कहा था मालदारों के पास मत बैठना ए आयशा, मालदारों के पास बैठने से दिल सख्त हो जाता है। और यहाँ हम मालदारों की सोहबत तलाश करते हैं, कहाँ मिले कोई प्रधान, कहाँ मिले कोई सांसद, कहाँ मिले कोई विधायक। इसीलिए हमारा दिल जब मर गया तो हम अपना नेता किसी डकैत को बनाते हैं, किसी चोर को बनाते हैं, किसी मर्डरर को बनाते हैं, किसी हरामखोर को बनाते हैं। और जब वह हरामखोर मर जाता है तो मैं खौफज़दा हो जाता हूँ, अब कहीं मेरी इज्जत तबाह ना हो जाए। मेरा वो हरामखोर मेरा सहारा था और अब हम डरने और सहमने लगते हैं। जबकि आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था कि कोई चोर डकैत तेरा रहनुमा नहीं है, कोई कातिल तेरा रहनुमा नहीं है, कोई मर्डरर तेरा रहनुमा नहीं है। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, तुम्हारा सहारा नबी है, हमारा सहारा नबी के सहाबा है, हमारा सहाबा हंसने का, हमारा सहारा हंसने का रिमेन है, हमारा जबरदस्त आसरा गौसे आजम है, हमारा जबरदस्त सहारा ख्वाजा गरीब नवाज है। मगर चूंकि हमारा दिल मर जाता है तो हम किसी गुंडे को अपना सहारा समझते हैं, किसी कातिल को अपना सहारा समझते हैं, किसी हरामखोर को अपना सहारा समझते हैं। और वह गुंडा कातिल हरामखोर अगर मर जाए तो हम बेसहारा हो जाते हैं कि हमारा कोई नहीं है। ये मेरे दिल के जलने का नतीजा है, ये मेरे दिल के सख्त होने का नतीजा है।
है, ये खुंडा गिरदी उनकी सोहबतों में रहने का नतीजा है। बुजुर्गों ने कहा था 3 दिन तक कोई किताब को का मुताला ना करे उसका दिल मरने लगता है। कौन जो मौलाना 20 साल पढ़ा उनकी बात है। बुजुर्गों ने कहा कि ये अगर 3 दिन किताब छोड़ दे तो इनकी सोच भी जाहिलाना हो जाती है, ये भी दुनिया की हवस में गिरफ्तार हो जाते हैं। वह तो कोई दूसरा था जो अल्लामातुल अज़हर मिस्र से लौटने के बाद जिनके नाना ने कहा था कि मैं सोचा था कि मेरा लाल मेरा नवासा मिस्र जाने के बाद बदल जाएगा, इसीलिए वह तैयार नहीं थे कि मिस्र या जाएं, मगर नाना को किसी तरह मना लिया गया और मिस्र गए। वहां 3 साल के बाद जब लौटे हैं, सबसे पहला माला उनके गले में बरेली स्टेशन पर मुफ्ती आज़म आलमी इस्लाम उनके गले में डाला और चेहरा देख के बोला, हाँ दूसरों का बेटा मिस्र जाके बदल जाता है, मगर मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वहां से बदल कर नहीं आया है, जैसे गया था वैसे बना हुआ आया है। वो ताजुश शरिया थे, 7 घंटे तक जिसके इंतजार में प्रधानमंत्री बैठे रहे, मगर ताकि एक झलक मुलाकात में कर लो, मगर उन्होंने कहा था कि मेरे पास वक्त कहाँ है, दीन की खिदमतों से फुर्सत कहाँ है, बाप दादाओं से जो जिम्मेदारी में पाया हो उस जिम्मेदारी को निभाने से फुर्सत कहाँ है कि मैं किसी दुनियादार हाकिम के पास जाऊं या उनको अपने पास मुलाकात के लिए आने का टाइम दूं। वह मिलना नहीं चाहते थे। कौन था? ये प्रधान के साथ घूमने वाला, ये विधायक के साथ सेल्फी लेने वाला, ये समाज के वार्ड काउंसलर के गोद में बैठकर फोटो लेने वाला, ये इसलिए कि दिल मर गया है तब हम उनको अपना सहारा समझते हैं और सेल्फी लेते हैं पढ़ने लिखने के बावजूद। वह कौन था इस दौर में जो जुनैद बगदादी की याद ताजा कर गया कि एक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का उनसे मिलने आया है, 7 घंटे तक बरेली के सर्किट हाउस में है, मगर वह शान बेनियाजी से लैस होकर कहा कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलना नहीं है, मैं अपनी खिदमत से फुर्सत पाऊं तब मैं किसी दुनियादार से मुलाकात करूं। वह कौन था जो गौसे आजम की याद ताजा कर गया कि बादशाह बगदाद चाहते थे कि गौसे आजम वो मेरे बाजू में बैठे, वो मेरे साथ कुर्सी में बैठे, उनकी वजह से मेरी इज्जत में इजाफा हो। जुनैद बगदादी के अहद में बादशाह बगदाद चाहता था कि जुनैद मेरे पहलू में बैठे ताकि उनकी वजह से मेरी शान में इजाफा हो। जुनैद बगदादी उनके पास बैठा नहीं चाहते थे, वो तो 1000 साल पहले की बात है। इस दौर में कौन जुनैद की याद ताजा कर गया? इस दौर में कौन गौसे आजम का नाइबपन उनकी याद ताजा कर गया? उसी को दुनिया कहती है कमोबेश 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिदे बरहक हुजूर अख्तर रजा का अज़हरी ताजुश शरिया के नाम से दुनिया याद करती है। आलिम हो तो ऐसा, जाहिद हो तो ऐसा, दुर्वेश हो तो ऐसा। ऐसे ही दुनिया पागल नहीं है, ऐसे ही वो आलिमुल उलमा नहीं है, ऐसे ही वो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन नहीं है, ऐसे ही वो दुनिया भर के उलूम व फनून के ताजदारों की आंख के मरकज वो नहीं है। उसके इल्म व फन ने, उसके ज़ुहद ने, उसके तक़वा ने उसे ऐसा सम्मान दिलाया कि जिनका जनाजा लाजवाब, जिनकी सोहबत लाजवाब, जिनका जलसा लाजवाब, मैं रहूं तो मेरे इंतजार में लोग 1 घंटा न ठहरे। और वो तन्हा साथ ताजुश शरिया की थी। गोवा की सरजमीन गवाह है, जहां गए वहां कई स्टेट के लोग 3 लाख की तादाद में मौजूद थे और 5-5 घंटे से लोग खड़े रहते थे। ताजुश शरिया की तकरीर नहीं सुननी है, एक झलक देख लो बस सीना ठंडा हो जाएगा। वह कौसा कैसा चेहरा था, 4 घंटे की तकरीर जो दिलों में इनकलाब बर्पा ना कर सके, वह 4 मिनट की एक झलक दिल की दुनिया बदल देती थी। वह दुर्वेश का चेहरा था, वह ताजुश शरिया का चेहरा था, जिन्होंने हमेशा अपने आप को किताबों से जोड़े रखा, एक लम्हा भी किताबों से अलग नहीं किया। 25 साल का जवान जिसे हिफ्ज करना है वो नहीं कर रहा है, वो 75 साल का शेख आंख की रोशनी कमजोर हो गई है, उसके बावजूद दूसरों से सुन सुन करके 75 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज कर लेते हैं। और फिर जुज़ियात पर ऐसी नजर है कि अल-जमअतुल अशरीफा के सेमिनार में सैकड़ों मुफ्तियाने कराम हैं, सबों की पहुंच रसाई वहां तक नहीं है, सारे लोग बहस मुबाहसा में मुब्तला है, सब किताबों को खंगाल रहे हैं। जहां सैकड़ों मुफ्ती की नजर न जाती हो वहां बिल्कुल पलक छुपकते, जहां जबान खुली किताब का नाम, सतर नंबर, सफा नंबर, वो सारी चीजें जबान से निकल रही, ऐसा लग रहा है कि आला हजरत के उलूम का वारिस और सच्चा जानशी 1400 साल की एक लाइब्रेरी है, जिस सीने में 1400 साल की तमाम बड़ी बड़ी किताबें उस लाइब्रेरी में जमा है। इधर सवाल उधर उस लाइब्रेरी से जवाब मिल रहा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमेशा ऐसे ही क्या आंख बंद किया, करामत के तौर पर सारी बातें होती थी, मेहनतें की उन्होंने। दरियाए
दरियाए नील नहीं देखा, वह मिस्र गए दरियाए नील नहीं देखा। मेरे बच्चे आज दिल्ली जाते हैं, सबसे पहले कुतुब मीनार देखते हैं, सबसे पहले जामा मस्जिद दिल्ली देखने जाते हैं, सबसे पहले लाल किला देखने जाते हैं। 3 साल तक मिस्र में रहे ताजुश शरिया, दरियाए नील बाजू में है मगर नहीं देखा। जब वहां से फारिग होकर आए और दूसरे सफर पे गए, उस सफर में वहां के आपके तालिब इल्म मुरीद ने कहा कि हुजूर जिस ब्रिज से मैं गुजर रहा हूं, यह ब्रिज कौन सा है? कहा बताइए। कहा ये दरियाए नील से हम लोग गुजर रहे हैं। 3 साल वहां रहे, दरियाए नील नहीं देखा। दरसगाह और हॉस्टल का रूम और नमाज पढ़ने के लिए अपना रूम और मस्जिद, और सिर्फ नजर किताब पे है। न दरियाए नील देखा, न कोहे तूर को देखने गए, और न मिस्र के वंडर्स और अजायबात को देखा, जहां फिरौन की लाश मुर्दा अजायब घर में मौजूद है। तमाम घमंडियों का सीना जिसके देखने के बाद हिल जाता है। न उस काहिरा के मुर्दा म्यूजियम को आप देखने गए, सिर्फ किताब पे नजर रही, मेहनत से मतलब रहा। रिजल्ट क्या निकला? JNU तो हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी है, IAS ऑफिसर बनना, DM बनना, ये तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कंपटीशन है। हिंदुस्तान के लोग बैठते हैं अल जामिअतुल अज़हर मिस्र, जहां दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक के मुसलमानों के बच्चे जहां पढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी काहिरा यूनिवर्सिटी, लाखों बच्चों की मौजूदगी में अपनी जमात में सबसे मुमताज लाना और पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप नंबर लाना, ये वही कर सकता है जो 24 घंटे अपना रिश्ता किताबों से जोड़े रखा। न दरियाए नील देखा, न कोहे तूर देखा, सिर्फ किताब देखा। जो भी मेहनत करेगा, ये दुनिया कानून से चलती है, न कि हमारे अजूबा सोच से चल रही है। लगा दो आम का पेड़, अल्लाह चाहेगा तो सेब निकल जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो माइक से हीरा निकल जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो इस सूखे खूंटे से चांदी सोना निकल जाएगा। लेकिन अल्लाह चाहेगा तब ना, अल्लाह चाहेगा आम के पेड़ से सेब निकल जाएगा, नहीं निकलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है, आम के पेड़ से आम, सेब के पेड़ से सेब, लीची के पेड़ से लीची, गेहूं के खेत से गेहूं, बासमती चावल धान जहां डाले वहां से बासमती धान। यानी कुदरत का कानून दुनिया सारा एक नियम से चल रहा है। इस दुनिया में जो मेहनत करेगा, इस दुनिया में जो दुनिया के कानून की पाबंदी से अमल करेगा इस कानून पर, वो कामयाब होगा। यहाँ है कि जो सब घर से बाहर निकला, खेत में हल चलाया, गेहूं का दाना डाला, घर में बैठा है तो कोई गेहूं घर नहीं आएगा। या खेत में जाए, हल चलाए, गेहूं का दाना डाले, एक दाना डाल, अल्लाह 1000 दाने तुमको अता कर देगा। एक दाना गेहूं का डाला, वह दाना सड़ा, एक पौधा निकला, उससे 1 दर्जन बालियां निकली, उस 1 दर्जन बालियों में 1000 दाना निकला। मैं एक दाना डाला, 1000 दाने अल्लाह ने दिया। यही कानून जिंदगी के हर डिपार्ट में है। मेहनत शर्त है, स्ट्रगल शर्त है, जद्दोजहद शर्त है। 10 साल 12 साल मदरसे में रहा, खाना खाया, कुरान खानी की, वहां से पैसे मिला, चप्पल खरीदा, बरकाती टोपी चेंज की, और सब दूसरों का मुकाबला करने के लिए लेनिन का कपड़ा पहना, तो फिर वह कपड़ा ही पहनता रहेगा और जूता ही बदलता रहेगा और पगड़ी ही पहनता रहेगा। इल्म उसकी जबान पे नहीं बोलेगा, वो किताब नहीं पढ़ा पाएगा, वो किताब नहीं लिख पाएगा, वह 2-4 घंटे वो किताब नहीं कर पाएगा, मुहद्दिस नहीं बन पाएगा, वो मुफस्सिर नहीं बन पाएगा। उसके लिए मेहनतें चाहिए, या उस्ताद का पांव भी दबाना पड़ता है और 10 घंटे किताब भी पढ़नी पड़ती है, ताकि उधर से मेहनत चले, इधर से उस्ताद की दुआ चले। दुआ और मेहनत दोनों मिलकर कामयाबी से हमकिनार कर दे। यहाँ सिर्फ अजमेर में जाके बैठ के हीरा मोती चांदी नहीं वहां से निकलता है, बल्कि मेहनत करे, 18 घंटे मेहनत करे, उसके बाद अजमेर चला जाए, कहे बाबा मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने मैट्रिक में 90% नंबर लाया, मैंने इंटरमीडिएट में 98% नंबर लाया, मैंने ग्रेजुएशन में 99.9% नंबर लाया। यह मेहनत करना मेरा काम था। फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, सिविक्स पढ़ना, कंप्यूटर साइंस पढ़ना, मैथ पढ़ना, जीके पढ़ना, जीएस पढ़ना, यह मेरा काम था। मैंने वो सब पढ़ा। बाबा एक निगाह करम कर दे, मुकाबला बड़ा सख्त है, इधर से मेरी मेहनत है, आप दुआ कर दे ताकि मैं IAS ऑफिसर बन जाऊं। इधर से मेहनत जाएगी, उधर से गरीब नवाज के हाथ उठेंगे, उनका चेहरा चमकेगा, तो दूसरी कौमें बाद में पहले गरीब नवाज की दुआएं काम आएंगी, वो कामयाब हो जाएगा। और जो कोई पढ़ाई न लिखाई करे और अजमेर में जाके चादर पकड़ के बैठ जाए, बाबा DM बन जा, बाबा DM में बाबा कब्र से निकल के 2-4 लात मारेंगे, बदतमीज तू क्या चाहता है? दुनिया के कानून को तोड़ना चाहता है, दुनिया के कानून के खिलाफ काम करना चाहता है। जाओ पहले पढ़ लिख मेहनत कर, उसके बाद फिर यहाँ से दुआ चलेगी। मेहनत मेरी, रहमत तेरी, यही फार्मूला है हर डिपार्ट का।
यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ने के जमाने में, और बाद में जब उसको पढ़ाने के लिए कहा जाता है, नौकरी की तलाश है, मुझको कहा दरसगाह में एक जगह खाली है, आपको मुल्ला हसन पढ़ाना है, शरजामी पढ़ानी है, आपको साहब मंतिक और फलसफे की किताबें पढ़ानी है। नहीं हम तो साहब हिदायतुन नहव पढ़ा देंगे, फारसी की पहली पढ़ा देंगे। ये तुमने 20 साल क्या किया तुमने मदरसे में? एक जुमला लिखना नहीं आता है, एक जुमला बोलना नहीं आता है, ये पगड़ी पहनने से क्या मतलब है? तुम हाफिज बन गए और यहाँ बोलते एक सेठ साहब का ऐसा हाफिज दो जो हरम के लहजे में कुरान सुनाए, मुंह मांगा नजराना दूंगा, 4 लाख 5 लाख जो होगा मैं दूंगा। मेरे गांव का गरीब घर का बच्चा जो मेरे छोटे भाई से पढ़ के हाफिज बना, जिसका बाप दादा नस्लों में कोई हवाई जहाज पर न चढ़ा हो, लेकिन वो गरीब मजदूर का बच्चा जो साल भर जिसका बाप हमारे मदरसे में पेंटिंग करता रहता है, ये दीवार में साहब वो दरवाजे में पेंटिंग करता रहता, हाफिज कुरान बना। अभी मैंने पूछा बच्चा का अभी तो फ्लाइट से लाख रुपए से ज्यादा नजराना मिला और फ्लाइट का टिकट मिला और अभी वो फ्लाइट से घर आया है। हजरत ये तो दुआएं हैं आपकी, इसी का नाम है इल्म, ताकत का नाम है इल्म, रोशनी का नाम है। वो कुरान पढ़ा, आज गरीब का बच्चा गांव के सारे जमींदारों के बच्चों को पीछे छोड़कर आज फ्लाइट से सफर कर रहा है। इसलिए अपनी मेहनत से पढ़ो, इल्म हासिल करो, इल्म तुम्हें ताकतवर बना देगा, इल्म तुम्हारी जिंदगी को रोशनी अता करेगा। पढ़ना होगा, सिर्फ टाइम बर्बाद नहीं करना है। टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कि तू चला जा किसी दुकान में, मोबाइल ठीक करना सीख ले, कपड़ा सीना सीख ले, घड़ी ठीक करना सीख ले, कोई काम हुनर सीख ले। ये 12 साल बर्बाद करने के बाद जब तेरी उम्र 25 साल हो जाएगी और उसके बाद तू कोई काम सीख भी नहीं पाएगा और कोई काम कर नहीं पाएगा। अभी ये उम्र है तेरी, आलिम बनना सब पर फर्ज नहीं है। आलिम बनो तो फिर आलिम बनो। इलाके में एक आलिम काफी है जो सारे इलाके की रहनुमाई करे, वह सबका फर्ज किफाया अदा कर देगा। अगर सारे लोग आलिम बन जाए तो नूरुन अला नूर है, वरना फर्ज नहीं है। फर्ज इलाके में एक आलिम का बनना जरूरी है ताकि चांद के मसले में, निकाह खुला तलाक के मसले में, इल्म फराइज के मसले में, समाज के झगड़ों के मसले में, यानी सारे मुस्लिम अपने प्रॉब्लम्स को लेकर उनके पास है, वो इतना बड़ा आलिम हो, वो सारे मसाइल को कुरान हदीस की रोशनी में वो हल कर पाए। हर इलाके में इस तरह का एक आलिम का रहना फर्ज है, मगर सब बच्चे का आलिम बनना फर्ज नहीं है। ये टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कि 20 साल के बाद भी फारसी की पहली पढ़ाना अगर ना आए और फिर कुरान पाक सुनाना ना आए, कुरान पाक पढ़ के पगड़ी लपेटी और 2 साल के बाद भूल गए, नहीं सीने में तकलीफ होती, मैं सुना नहीं पाता हूँ, एक बहाना करके आ गए, तो फिर ये 20 साल बर्बाद क्यों किया? उस 20 साल में तो एक मोटर का जबरदस्त मैकेनिक हो जाता, कार का मैकेनिक हो जाता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल 95% मदरसों में सिर्फ वक्त की बर्बादी हो रही है, मेहनत नहीं करते लोग। कहते हैं साहब उस्ताद का पांव दबाना, खैनी लटा के देना, पान लगा के देना, चाय बना के देना, जूता पॉलिश करके ला के देना, कपड़ा प्रेस कर देना, उनकी खिदमत कर रहा, खिदमत का सवाब मिलेगा, सवाब का बदला आखिरत में मिलेगा। और दुनिया में एक जबरदस्त मुदर्रिस बनने के लिए 10 घंटे किताब पढ़ना पड़ेगा और आधा घंटा पांव दबाना होगा। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से पांव दबाने की बरकत चलेगी, तो जबरदस्त फकीह बन जाएगा, शेखुल हदीस बन जाएगा, शेखुल तफसीर बन जाएगा। दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से आधारित होता है, सिस्टम से हट के नहीं होता है। बोल दिया कहा अल्लाह चाहेगा तो ऐसा हो जाएगा। जिस तरह शराबी भी बोलते हैं इस तरह से, अल्लाह के इशारे के बगैर पता नहीं हिलता, मैं शराब पीता हूं तो अल्लाह चाहता है तब तो पीता हूं, इस तरह के जुमले से आदमी काफिर हो जाएगा। अगर कोई बोले कि अल्लाह शराब पिलाता है तो मैं पीता हूं, वरना अल्लाह के इशारे के बगैर कोई काम नहीं होता, इस तरह का बोलने वाला इस्लाम से खारिज हो जाएगा। वह साहिब निकाह हो, उसका निकाह टूट जाएगा। उसके बाद उसके बच्चे जितने पैदा हुए सारे बच्चे उसके वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे। इसे मोमिन पहले चकड़ नहीं बोलता, मोमिन पहले सोचता है, मोमिन पहले गौर करता है, उसके बाद फिर मोमिन बोलता है, ताकि उसका ईमान बचा रहे, उसका निकाह बचा रहे, उसके बाल बच्चे हलाली रहे, हरामी ना हो। जब देखें समाज में माँ बाप का सम्मान न रहे तो समझ जाए कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जब जान ले कि जलसा जुलूस को बर्बाद करने वाले लोग ज्यादा हो रहे हैं, समझ जाए कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जब समझ रहे इमाम और उलमा की हुटिंग करने वाला, बेइज्जत करने वाला बच्चा समाज में बढ़ रहा है, समझ जाए कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जब मस्जिद के दरवाजे पर डीजे बजे, बिंजू बजे, समझ जाए कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। माल कमाना कमाल नहीं है, माल तो हरिजनों के पास, तुम और चमार के पास, मुर्दा जलाने वाले के पास,
इतना माल है कि उसके मकान की कीमत खरबों की है। माल की कोई हैसियत नहीं है, माल कमाना कमाल नहीं है, अखलाक कमाना कमाल है, तकवा कमाल है, नमाजों की पाबंदी कमाल है, हक और नाजायज बातिल के दरमियान तमीज करना कमाल है, जायज और नाजायज के दरमियान फर्क करना कमाल है। यानी आदमी और एक सख्त मुस्लिम मोमिन बन जाना कमाल है, न कि मालदार बनना कमाल है। अल्लाह के पैगंबर सरकार अक़ल इस्लाम फरमाते हैं दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं जो नमाज रोजे हज और ज़कात छोड़कर सिर्फ दुनिया कमाए। उसकी मिसाल हुजूर ने दी, मरी हुई बकरी को कुत्ता खाता है, उसी तरह दुनिया जलील है, मिस्ल मुर्दार के है, और उसके तलबगार कुत्ते हैं जो नमाज रोजे हज और ज़कात छोड़कर सिर्फ दुनिया खोजे, सिर्फ दुनिया चाहे। उसकी मिसाल हदीस में मुर्दार पे रीझने वाले कुत्ते की दी गई है। मैं कहना चाहता आज देख लें, आज पता लगा, जायजा करें अपने समाज का किस कदर इल्म की तौहीन, इल्म का अपमान, उलमा से दूरियां, और साथ इल्म है, तकवा है, कोई अपनी बेटी को देना नहीं चाहता। वहां शराब है, शबाब है, सब कुछ है, और 24 घंटे फिल्में देखी जा रही हैं, 24 घंटे घर में दुनिया का चर्चा है, फिर भी वहां बेटी दी जा रही है ये कहते हुए कि चलो आज शराबी है कल अच्छा हो जाएगा, यानी वहां अच्छा हो जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो अच्छा कर देगा। और वही सोच यहां बदल जाती है, ये आलिम है, मुत्तकी है, नेक है, मगर गरीब है, चलो अल्लाह चाहेगा तो कल दौलतें दे देगा, ये मालदार हो जाएगा। और ऐसा होता भी है, बेशुमार लोग जो आलिम बने उसके गरीब थे, और अल्लाह ने उसके लिए असबाब ऐसे पैदा फरमा दिए। आज हवाई जहाज पे चल रहा है, 50 लाख 1 करोड़ का घर बना रहा है, वो 10-20 बीघा जमीन खरीद रहा है, वो 7 अरबों में खेल रहा है, तो बिजनेस की लाइन लग गई, खिताबत की लाइन लग गई, बड़ी दरसगाह मिल गई, अमेरिका यूरोप जाने की लाइन लग गई, या फिर अपने ही गांव में कोई दूसरा कारोबार करने लगा, उस तरीके से अल्लाह उसको दे दिया। वहां शराबी है, दौलत है, तो बेटी को दे दिया। ये नहीं सोचा कल वो तलाक दे देगा, ये नहीं बोला कि कल उसको मारेगा पीटेगा, ये नहीं सोचा कि दौलत से पास अगर मेरी बेटी जलील हो गई मैं उस कमीने को बेटी दे के मैं क्या करूं, जो शराबी है, उसका जिसके नस्लों पे बुरा असर पड़ेगा। नहीं, माल है, बेटी दे दिया, अल्लाह चाहेगा कल ठीक हो जाएगा। और वही नजरिया यहाँ बदल जाता है, मौलाना है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, खूबसूरत है, आज दौलत नहीं है तो कोई बेटी नहीं देना चाहता, चलो वही नजरिया यहाँ कायम कर ले, अल्लाह चाहेगा आज इल्म दिया है कल अल्लाह माल भी दे देगा। नहीं, ये सारा नजरिया दौलतों पे महदूद होकर रह गया, सिर्फ जलील सी दुनिया के हुसूल पे रह गया। कौन सीखेगा कुरान, कौन पढ़ेगा कुरान, कौन साहब उसके घर में पढ़ेगा दरूद, कौन उसके घर में रोएगा, कौन मुसल्ला बिछाएगा, कौन रात के आखिरी पहर में तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा। 24 घंटे जिसके घर में सनीमा चले, जिसके घर में साहब हीरो की बातें हों, जिसके घर में फुटबॉलर की बातें हों, जिसके घर में क्रिकेटर की बातें हों, अगर उसकी बेटी किसी काफिर के साथ भाग के मुर्तदा हो जाए, काफिरा हो जाए, चली जाए, ताजुब की क्या बात है। वह मौलवी जो बोलता है कि 6 लाख मुसलमान की बेटी वह काफिरा हो गई, काफिरों के साथ भाग गई, वह झूठ है, बकवास है, मुसलमानों को नर्वस करने की बात है। मेरा जोन हिंदुस्तान का अक्सरियती इलाका है मुसलमानों का, जिस तरह इलाका ये बस्ती का है, मुसलमानों का एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र, उसी तरह पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, ये मुसलमानों का अक्सरियती इलाका है। आज से 25 साल पहले कांग्रेस चाहे जिसको भेज दे, लूला लंगड़ा अपाहिज, वो वहां से जीत के आता था, मुसलमान आंख बंद करके कांग्रेस को वोट देते थे। MJ अकबर और न जाने कौन कौन लोग गए वहां से जीत के आए, क्योंकि वहां मुसलमानों की तादाद 70%, बाज हल्कों में 90% मुसलमान है। हिंदुस्तान का एक वाहिद इलाका है, वहां मुसलमान इतनी बड़ी आबादी है, उसके बावजूद तो 10 साल में खबर नहीं मिलती कि फला मुसलमान की बेटी किसी काफिर के साथ भाग गई। एक का कोई खबरें आ रही है, 6 लाख बेटियां कहां से आ गई। अलबत्ता आज जिस घर में इस्लाम नहीं है, जहां 24 घंटे 5 कमरे में 5 LED टीवी, जहां सिर्फ एक्टर्स हैं और एक्ट्रेस की कहानी है, जहां बाल बच्चे भी एक्टर की तरह कपड़ा पहनना चाहते हैं और पहन कर रहते हैं, अगर उसकी बेटी किसी काफिर के साथ भाग जाए, चूंकि उनकी दोस्ती काफिरों से, उनकी दोस्ती डकैतों से, उनकी दोस्ती झूठ बोलने वाले दारोगा से, उनके शादी ब्याह फंक्शन में चोर लुच्चा लफंगा आता था, मौलाना को गाली दिया जाता था, मदरसे को दुकान कहा जाता था, खानकाह को तावीज बेचने वाला अड्डा वो कहता था। न कोई पीर जा रहा है, न कोई आलिम जा रहे हैं, न कोई नमाजी जा रहा है, चूंकि पैसा होने के बाद अब उसकी दोस्ती काफिरों से, तो काफिर जा रहे हैं, डकैत जा रहे हैं, चोर जा रहे हैं। उसकी बेटी अगर जींस टी-शर्ट पहन के किसी काफिर के साथ भाग जाए तो ताज्जुब की बात क्या है। मुस्लिम घराना था ही कब, उसके घर में अल्लाह का डर था ही कब, अगर पहले भी वैसे ही था, अगर वह भाग भी गई या उसका बच्चा भाग गया, चौंकने की क्या बात है। हम तो वो घर देखते हैं जिस घर में आलिमों का आना जाना हो, जिस घर में पीरों का आना जाना हो, जिस घर में बादशाह नमाजियों का
का आना जाना हो, जिस घर में कुरान पाक की तालीम हो, ना उसका बेटा बहकता है ना उसकी बेटी बहकती है, नहीं बहकेगी उसकी बेटी। मैंने एक अरबपति को देखा अकोला महाराष्ट्र में, यानी जो घर का मालिक है वो जमींदार, अरबों में खेलने वाला, नांदेड़ में, हैदराबाद में, नागपुर में, खरबों का जिसके पास शोरूम हो, उसका 4 जवान बेटा, वो चारों बेटे के चेहरे पे दाढ़ियां, उनके घर की सारी औरतें हिजाब में, उनका घर करोड़ों का, उस घर में 2 बार मैं जाके ठहरा हूं, कहीं से टेलीविजन की आवाज नहीं। उनका जवान बेटा जो अरबों की गद्दी पे बैठता है, उनके चेहरे पे दाढ़ी। क्या वो जेएनयू में पढ़ने वाला कोई मौलवी जो गया अलीमिया से, अतारी उसकी छोटी हो गई, उसके लिए वो एक मॉडल है, वो जो बिजनेस कर रहा है, अरबों में खेल रहा है और दिन रात वो कस्टमर के सामने रह रहा है, हिंदुआना माहौल में रहता है, क्रिश्चियनों के माहौल में रहता है, मगर न दाढ़ी छोटी हुई, न सर से टोपी उतरी और न ही नमाज छूटी। बासाख्ता अपने मॉल में उन्होंने नमाज गाह बनाया हुआ है, खुद नमाज पढ़ता है, उसमें काम करने वाले 10 मुसलमानों के बच्चे वर्कर वो नमाज पढ़ते हैं, उसके घर में आलिमों के बैठने और बहस करने और इल्मी मजलिस की एक बासाख्ता तौर पर एक हाल बना हुआ है। ये अरबों में खेलने वाले लोग हैं। उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी आने वाली नस्लें अपने बाप दादाओं से असर लेती है। वहां कोई काफी ठमक तो जाए, यहाँ चूंकि घर ही लूटा हुआ है, 24 घंटे फिल्म का चर्चा, एक्टर का चर्चा। अगर उसकी बेटी भाग जा रही हो, ताज्जुब की क्या बात है। अपने घर को इस्लामी बनाए, अपने घर में 24 घंटे कुरान पढ़वाए, अपने घंटे हदीस से पाक, अपने घर में 2-4 मिनट रोजाना हदीस से पाक का चर्चा हो। मैं आलिमों को दावत दे के दस्तरखान बिछा के खिलाए, अपने बच्चों को उनके साथ बैठाए, आलिमों का चेहरा दिखलाए, उनसे उनके सोहबत में अपने बच्चों को बैठाए। जिस तरह डकैत के पास कोई बैठे या नेता के पास, नेता डकैत बनना तय है, जो आलिमों का चेहरा रोजाना देखे और आलिमों के साथ बैठ के खाए, उसके ईमान का मजबूत हो जाना तय है। अगर कोई काफिर की बिट का बेटा उसको 1 करोड़ का प्रपोज करे, सलमान की बेटी का ईमान लूटना चाहे, वो यही जवाब देगी, मैं तेरे माल पे, तेरे चेहरे पे मैं थूक दूंगी, मैं कुंवारी रह जाऊंगी, मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये बात वही कह सकती है जिसका कल्चर इस्लामी हो, जिसके घर में कुरान हदीस का चर्चा हो, वरना सब तो अब लूट ही गए। घर भी लूट गया, औलाद भी लूट गई, सीना भी लूट गया, चेहरा भी लूट गया, एक शादी ब्याह का कल्चर था वो भी लूट गया, अकीका खत्मा का कल्चर था वो भी लूट गया, और हैप्पी बर्थडे टू यू का कल्चर ऊपर से मुसल्लत हो गया। यानी मस्जिद का चंदा के लिए जाए तो पैसा नहीं है, और 10,000, 20,000, 10 लाख रुपए हैप्पी बर्थडे टू यू के नाम पे खर्च कर दे, अपने बच्चों को हिंदुआना और काफिराना मुशरिकाना कल्चर से करीब कर दे। जायजा लेना होगा। या आप चाहे जैसे भी गुजारे, मगर कुरान पाक का एजाज आप देख लें। कुरान अपना काम कर रहा है, मदरसा अपना काम कर रहा है, उलमा अपना काम कर रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एक प्रोफेसर है, वह सारी जिंदगी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा और फिर उसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वह साइंस पढ़ा रहा है। पढ़ाते पढ़ाते उसके दिमाग में बात आती है, वो बात आती है कि हमें एक ऐसा कारनामा अंजाम देना है जिसको आज तक कोई नहीं किया हो। चूंकि साइंस पढ़ने वाले का दिमाग वह साइंटिफिक हो जाता है, वो किसी की नकल नहीं करना चाहता, वो अपना कोई प्रोडक्ट दुनिया में देना चाहता है, वो अपनी कोई रिसर्च दुनिया में छोड़ना चाहता है, कोई अजूबा किताब लिखना चाहता है जो उससे पहले किसी ने नहीं लिखा हो। उस डॉक्टर ने, उन्होंने एक ऐसी किताब लिखने की ठान ली कि आज तक न न्यूटन इस पर कोई रिसर्च किया हो, न आइंस्टाइन ने इस पर कोई किताब लिखी हो, यानी किसी कोई दूसरा वैज्ञानिक इस चैप्टर को टच न किया हो। उस चैप्टर को मैं टच करता हूं। उन्होंने उस चैप्टर को लिया, खूब गहन अध्ययन मुताला किया, उसे पता चला कि ब्रेन पे तो बहुत सारा काम हुआ है, आंख पे तो बहुत सारे काम हुए हैं, दांत पे तो बहुत सारी रिसर्च हुई है, और फिर स्किन पे तो बहुत सारी तहकीक हुई है, लेकिन एक पॉइंट है जिसम में, यानी वो फीलिंग ऑफ पेन पर आज तक कोई काम नहीं हुई है, मुझको उस पर रिसर्च करना है। उन्होंने उस पर तहकीक करनी शुरू की कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है या हड्डी में या गोश्त में, कहां होता है। चूंकि मैं इस पर रिसर्च करूंगा, एक किताब लिखूंगा और दुनिया में वालों के सामने पेश करूंगा, ताकि दुनिया मुझको याद करे कि इस फील्ड में पहला काम करने वाला ये शख्स है जिसने जिस फील्ड में आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने का काम करना शुरू किया कि दर्द का एहसास कहां होता है, चमड़े में होता है, हड्डी में होता है, गोश्त में होता है। उन्होंने तहकीक करते करते कई साल लगा दिए। कॉलेज का थाईलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ एनाटॉमी ऑफ थाईलैंड का बहुत बड़ा प्रोफेसर है साइंस का, उन्होंने लिखना शुरू किया। 1 साल में नहीं, अचानक हम लिख दें
अचानक प्रेस से किताब बाहर आ जाए और सारी दुनिया मेरा चर्चा हो जाए। ये अचानक वाला काम दूसरे लोग करते हैं, कमजोर किस्म के लोग करते हैं। और उजलत और जल्दबाजी में आज दुकान खोला, आज ही मैं अरबपति बन जाऊं, आज मैं पढ़ा लिखा, आज ही मुझको नौकरी मिल जाए, आज मैं फारिग हुआ, आज ही मुझको नौकरी मिल जाए। वहां धैर्य है, वहां पेशेंस है, वहां संतुलन है, वहां बैलेंस है, वहां स्ट्रगल है, वहां स्लोली काम है, वहां ग्रेजुअली है, धीरे धीरे स्लोली काम करना है और ठहर ठहर कर मजबूत काम करनी है। जल्दबाजी करने वाला मुंह के बल गिरता है। उसी को इस्लाम ने कहा अल-उजलतु मिनश शैतान, जल्दबाजी शैतान की तरफ से। दुकान खोला, कल ही अरबपति बन जाए, अरबपति नहीं बना, फौरन दुकान शटर बंद किया और बंबई भाग गए। धैर्य रखना होगा, उसूल और ज़ाब्ते से काम करना होगा, अल्लाह पर मजबूत यकीन रखना पड़ेगा। अल्लाह चाहता है तो गांव देहात में बरकतों के दरिया बहा देता है। शहर में बहुत सारे स्कूल बंद हो गए। मैंने अपनी आंखों से बंबई के एक स्कूल को देखा जो दर्जनों कमरे पर मुश्तमल था। हायर सेकेंडरी स्कूल, उसको मैंने बंद होते देखा, उसमें ताले लगते देखा। करोड़ों की दुकान थी, उसको मैंने बंद होते देखा। ऐसा नहीं कि बंबई के मतलब जो वहां चला गया वो अरबपति बन गया, वहां भी लोग मकान बेचकर, जमीन बेचकर लोग देहात भाग रहे हैं। अल्लाह जहां बरकतें देता है वहीं पे ग्राहक की भीड़ लगने लगती है, चाहे देहात हो चाहे शहर। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके बड़े बनने में 10 साल की मेहनतें हैं, 25 साल की मेहनतें हैं। और हमारे बच्चे उजरत और जल्दबाजी से काम लेते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक ने जितनी भी किताबें लिखी हैं, किसी के पीछे 20 साल की मेहनत है, किसी के पीछे 25 साल की मेहनत है, किसी के पीछे 50 साल की मेहनत है। मेहनत करना होगा, धैर्य रखना होगा, स्लोली और ग्रेजुअली आगे स्टेप और कदम बढ़ाना होगा। ये बातें जो आज रामदेव जी कहते हैं, यही बातें मुरारी बापू आज कहते हैं, यही बातें वो कौन बाबा आजकल आया है वो बोल रहा है, यही रविशंकर कह रहा है। तो उसकी बातें हमारे बेटे हमारी बेटियां जो कॉलेज में पढ़ती हैं वो उनकी बातें सुन रही है। साहब यहाँ से स्पिरिट मिल रहा है, यहाँ से मोटिवेशन मिल रहा है, यहाँ से जीने का हौसला मिलता है, और आप लोगों के पास कहाँ मिलता है? ये बातें आज मैं 20 साल से पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक इसका असर मैं देख रहा हूँ। दिल्ली में IAS तैयारी करने वाले इसी इलाके के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी तकरीर रोजाना सुनते हैं और कहते हैं कि मैं तो एग्जाम छोड़ने वाला था, क्योंकि एक दो बार बैठा कामयाब नहीं हुआ। आपकी तकरीर से हौसला मिलता है, आपकी तकरीर से मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन को मैं महसूस करता हूँ और कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूँ। मगर इसका मजाक उड़ाएंगे दूसरे लोग जो मेहनत को नहीं जानते, जो सब्र को नहीं जानते, जो धैर्य को नहीं जानते, जो साइलेंस को नहीं जानते, जो दुनियावी मसरूफियात से हटकर अपनी जिंदगी किताब से जोड़ देना नहीं चाहते। उसके नजदीक एक मजाक है, क्योंकि वह तो ही सुनने का आदी है। ये काफिर या मुशरिक है, उसको खूब मार दे, काट दे, सीने पे चढ़ जाए, उसको मार दे, उसको लाठी घुसा दे, बस वही सुनने के आदी है, बस वह कवाली सुनने के आदी है, वह मारने घुसोड़ने के आदी है। ये नहीं कि मैं ऐसी हिकमत की बातें बोलूं जिससे कि एक नजदी का सीना हिल जाए और वह तौबा करके सुन्नी बरेलवी बन जाए। तो मार धाड़ करके अपने लोगों को भगा देना ये कमाल नहीं है। दलाइल की जबान में बात करके दो चार नजदियों को बरेलवी आला हजरत से करीब कर देना ये कमाल की बात है। वह लाठी से करीब नहीं होता, वह दलाइल की जबान दुनिया जानती है, दलाइल की जबान से बोलना चाहिए। ये मार धाड़ काट देंगे, इसी कल्चर को हमारे बच्चे पसंद करते हैं। इनके सामने नमाज रोजी हज और ज़कात की बातें करें उसको बोझ समझते हैं। इनके सामने सब्र और शुक्र और धैर्य और स्ट्रगल और जद्दोजहद जो इस्लाम का बुनियादी पैगाम है, दुनिया में जहां भी अच्छाइयां हैं वो सारी अच्छाइयां इस्लाम की अता की हुई है। वरना जिसको जीने का शऊर आज भी नहीं है, जो जानवर के सामने हाथ जोड़े, जो चुचंदर के सामने हाथ जोड़े, जो बंदर के सामने हाथ जोड़े, जो नदी नाले पहाड़ के सामने हाथ जोड़े, तुम उसको क्या समझता है? वो इंटेलिजेंट है, वो जेंटिल है? क्या समझता है? वो साफ बहुत बड़ा ज़हीर है? क्या समझता है? वो बहुत बड़ा अक्लमंद है? जिसको इतना शऊर नहीं है कि सब चुचंदर खुदा है, कि दुनिया का खाली खुदा है, उससे तुमको क्या रोशनी मिलेगी? जाहिर सी बात है तुम्हें धैर्य रखना होगा, सब्र से काम लेना होगा। वो तुम्हें क्या जीने का उसूल बताएगा। जीने का उसूल कुरान में है, जीने का उसूल हदीस में है। जिसने हदीस कुरान को समझा उन उलमाए रब्बानियीन की जिंदगी में है। ये अल उजरतु मिनश शैतान, ये हदीस से पाक में आया है कि जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। निकाह में, लड़की के सिलेक्शन में, लड़के के सिलेक्शन में जल्दबाजी नहीं बल्कि सब्र और तहम्मुल के साथ, सच्चाई के साथ आदमी काम ले। यहाँ तक कि बस निकाह 4 हुई, जल्दी से जज्बात में फैसला ले लिया, फिर 2 साल के बाद उसको काट करके 50 टुकड़ों में बांट दिया और जल्दबाजी में लड़के का मुंह देखा, फौरी फैसला ले लिया, नहीं पापा मुझको वही शादी करनी है, शादी कर लिया। वो अभी आज प्यार दे रहा है, वो आज ये प्यार हमेशा देता रहेगा, बस जज्बात में फैसला लिया, शादी कर ली। 4 साल के बाद शादी टूट गई। प्यार के नाम पे जितनी भी शादियां होती है उसमें से 95% शादियां वह तलाक पे टूट जाती है, कत्ल पे टूट जाती
جاتی ہے. لڑکے کے بھاگ جانے کے بعد ساری زندگی کافی افسوس ملنا پڑتا ہے. جذبات میں فیصلہ نہیں, جذبات میں نہیں, سینٹیمنٹ میں نہیں, بھاوناؤں میں بہہ کے نہیں, بلکہ صبر کے ساتھ سچائی سے قریب ہو کر اپنے باپ دادا بزرگوں کی نصیحتوں کو سن کر قرآن حدیث جو کہے اس پر اپنے سینے پر پتھر رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. یہ سارا سلیقہ اسلام سکھاتا ہے. اسلام نظام حیات دیتا ہے. نماز, روزے, حج و زکات تو 4 پیلر ہے. باقی مرتے ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک زندگی میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ سے بحث تو اسلام کرتا ہے. اور اس سرکار دو جہاں کو ہمارے لیے ماڈل بنا گیا ہے. وہ تنہا ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ہے جو ہم سبوں کے لیے ایک رحمت ہے. جو بھی روشنی حاصل کرنا چاہتا ہوں ساری روشنی وہاں سے ملتی ہے. جس کو سوچا تک نہیں تھا بندہ وہ روشنی وہاں سے ملتی ہے. باتھ روم میں کیسے جائیں یہ تو آج پتا چلا. سائنسدانوں نے کہا ہے وہاں جاؤ تو سب سے پہلے بایاں پاؤں رکھو, نکلو تو داہنا پاؤں نکلو. اگر وہاں اٹیک آ جائے, جیسے کل کی بات ہے, 2 شادی شدہ جوڑا, دونوں شادی کی رات میں, سہاگ رات میں دونوں کو اٹیک آ گیا, دونوں مر گئے. پرسوں کی بات ہے, یعنی دونوں میاں بیوی آئے اور دونوں کی موت اسی کمرے میں ہو گئی سہاگ رات میں. ایک کا تو اٹیک, یہ تو سمجھ میں آتا ہے, چلو اس کو اٹیک آ گیا, اور دونوں کو ایک ٹائم میں اٹیک آنا اور دونوں کا مر جانا کمرے میں, اور صبح سویرے دروازہ توڑ کے ان کی لاش کو نکالنا. ایک عجوبہ واقعہ. یہ کل کا سارے سائنسدان, دلی ایمس کے ڈاکٹر وہ سب تبصرہ کر رہے ہیں کہ ایک ساتھ دونوں میاں بیوی کو اٹیک آنا, اس میں کوئی زہر خورانی کا ہاتھ نہیں ہے, کوئی پیار محبت کرنا یا خودکشی پہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک جانا. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی آئی ہے, ان دونوں کو اٹیک آیا ہے. اٹیک دونوں کو ایک ساتھ آنا, لڑکے کو آیا ہے یہ تو خبر ہے, لڑکی کو اٹیک آیا یہ تو خبر ہے, مگر دونوں کو ایک ساتھ اٹیک آئے اس کی خبر آج تک نہیں. تو ڈاکٹر خود پریشان ہے. انہوں نے کہا, کیا کہا, کورونا کے بعد حالات بدل گئے ہیں, سچویشنز بدل گئے ہیں, کب کیا ہو جائے گا کہنا مشکل ہے. اٹیک آ رہا, راستہ چلتے چلتے بچے بائک سے گر رہے ہیں, راستہ چلتے چلتے گر رہے ہیں. یہ باتیں دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اٹیک آ سکتا ہے یا دل بائیں طرف ہے, اور اگر آپ باتھ روم میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلے آپ بایاں پاؤں داخل کریں. اگر اس وقت اٹیک آیا تو باتھ روم کے اندر نہیں, آپ باہر گریں گے. وہاں سے جب آپ باہر نکلے تو آپ داہنا پاؤں باہر نکالیں. اس وقت اگر اٹیک آیا تو آپ بائیں جانب آپ گر پائیں گے. یعنی ایک باریک سی باتیں ہیں جس پر ویگانک ریسرچ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے وہاں گھسنے کا یہ طریقہ ہے جیسے ویگانک نہانے کا طریقہ بیان کرتے ہیں. پچھلے سال بہار میں زبردست برین ہیمریج کا کیس آیا. وہاں کے ایمس کے ڈاکٹر نے, پی ایم سی ایچ کے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس بار جو کیسز آئے ہیں برین ہیمریج کا کوئی بڑا کاوج نہیں تھا, یہ تو زبردست ڈیپ تھنکنگ, ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہیمریج ہوتا ہے, خون جم جاتا ہے. وہ یہ 2-4 کیس ایسے آئے ہیں سردی میں نومبر دسمبر میں کہ جس کو کوئی بلڈ پریشر ہائی نہیں تھا, اٹیک بھی نہیں تھا. یہ صرف نہانے کا طریقہ غلط تھا. انہوں نے نہانے کا طریقہ غلط تھا کہ کڑاکے کی سردی ہے, وہ باتھ روم میں گھسا, فوراً شاور کے نیچے اپنا سر رکھا, اور جیسے ہی پانی اس سردی کے موسم میں اس کے سر پہ پڑا, سر کا خون جمع, ہیمریج ہوا, وہی وہ گر گیا. وہ کہتے ہیں کہ نہانے کا طریقہ غلط ہے. سائنسدانوں کو نہانے سے کیا مطلب ہے؟ وہ تو یہ مولوی بولتا ہے کھانے کا یہ طریقہ کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھویا جائے, ایک پاؤں کو بچھایا جائے, ایک پاؤں کو کھڑا کیا جائے, چبا چبا کے کھائیں. اگر 32 بار ایک لقمے کو چبائیں تو پھر گیسٹرک کی بیماری سے زندگی بھر کے لیے مکت ہو جائے. چونکہ 32 دانت کی طاقت اس لقمے میں شامل ہوگی تو لیور کو چھوٹی بڑی آنت کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. تو ایسے بیٹھیں, ایسے چبائیں, بھوک ابھی باقی رہے تو کھانا چھوڑ دیں. یہ وہ سارا طریقہ ہے جو آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شوگر کا مریض مر جائے گا اگر وہ پیٹ بھر کے کھائے گا. بھوک لگے تو کھائیں, بھوک رہے تو کھانا چھوڑ دیں. یہ اسلام شروع سے چلا رہا ہے. کھانے کا یہ طریقہ ہے, بھوک لگے تو کھاؤ, بھوک رہے تو چھوڑ دو. کھانے کے بعد دونوں ہاتھ گٹوں سمیت دھو لو, اس کے بعد الحمدللہ پڑھو. اس کے بعد پھر جب بھوک نہ رہے تو مت کھاؤ. سونے کا طریقہ اسلام بتاتا ہے, داہنی کروٹ سو تاکہ دل اوپر رہے اور آپ ادھر رہے, دل کی بیماری نہ ہو. تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ بائیں کروٹ سو جائیں تاکہ دل کے اوپر میں جب سینے کا بوجھ پڑے گا تو گہری نیند آئے گی. اور گہری نیند کروڑوں بیماری کی دوا ہے, کروڑوں کی دوائی ایک طرف, گہری نیند ایک طرف. آج بلڈ پریشر ہائی, شوگر, برین ہیمریج, یہ نیند کی کمی کا بہت بڑا فیکٹر ہے. لوگ 8 گھنٹے کی گہری نیند نہیں لے پاتے ہیں. سونے کا طریقہ رات میں تھا, یہ دن میں سو رہے ہیں. رات بھر جاگنا اور دن میں سونا, نتیجے میں نیتا سے لے کے چپراسی تک سب کو اٹیک آ رہا ہے. یہ کھانے کا طریقہ, یہ سونے کا طریقہ, یہ نہانے کا طریقہ, یہ سب کام مولوی کا تھا. اور ہم بتاتے تھے تو ہم کو یہ دقیانوسی کہتا تھا. یہ ٹریڈیشنسٹ ہے, یہ دقیانوسی ہے. آج یہی کام ایمس
के डॉक्टर कर रहे हैं, पीएमसीएच के सर्जन कर रहे हैं, वह दवाई न दे के कहते हैं कि जीवन शैली बदलिए, लाइफ स्टाइल बदलिए, खाने पीने सोने का तरीका बदलिए। ये ब्रेन हेमरेज का जो केस आया है, ब्लड प्रेशर हाई से नहीं हुआ है, नहाने का गलत तरीका था। बाथरूम जाने के बाद फौरी सर पे पानी न डालें। वो कहता है कि वहां जाने के बाद सबसे पहले आप दूसरे अंग पे पानी डालें, यानी हाथ धोएं, दूसरे पार पे पानी डालें। जब बदन में सर्द पानी को सहने की ताकत हो जाए, उसके बाद सर पे आप आखिर में पानी डालें, फिर पूरे बदन को साफ करके बाहर निकल जाए। ये पीएमसीएच का बड़ा सर्जन आज बोला, अखबार में छपा। हर मदरसे के मौलाना से पूछिए जाकर के, उर्दू की किताब अनवार शरीयत जो पहली किताब है, फिर नहाने धोने का तरीका है। अरबी की किताब नूरुल इज़ा है, उससे बड़ी किताब कुदूरी है, उससे बड़ी किताब शरह वक़ाया है, उससे बड़ी किताब हिदाया है, उससे बड़ी किताब और बहुत सारी है, फतवा काजी खां, फतवा रज़िया, फतवा हिंदिया, जितनी किताबें नहाने का तरीका सारी किताबों में जो बताया गया है, और सब में किताबुल तहारत पहले है। उस किताबुल तहारत में नहाने का जो तरीका है, ये उलमा आपको बताएंगे। चूंकि आपको मालूम नहीं है, आपको ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ है, इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा ये नहाने का तरीका जो इस्लाम ने दिया कितना बड़ा वरदान, कितना बड़ा गिफ्ट, कितना बड़ा तोहफा है। जब मुसीबत आती है तब लोग आके ज़कात लिखवाते हैं, जब माल चोरी होती है माल की तब वो आते हैं मदरसा, जब वो लोग कहते हैं ना कि जब बढ़ती है तब ज़कात बढ़ती है, जब आदमी परेशान होता है तब वो बोलता है मौलाना सही बोला था, पहले बोलता है ये सब बोलने की बात है, जबान की कलाकारी है, ये सब जबान की कलाकारी है, ये कलाकारी का मुजाहरा हो रहा है, उसका हकीकत से क्या ताल्लुक है, उस पर कौन अमल करता है, ये भी उस पर अमल न करते होंगे, ये जबान की कलाकारी है। ये सब क्या है? ये गुस्से का नतीजा है, ये दौलत का नतीजा है, ये घमंड का नतीजा है, इस्लाम को न समझने का नतीजा है। सारी किताबों में जो नहाने का तरीका है, जब भी बाथरूम में जाए पहले हाथ गट्टों समेत धोएं, उसके बाद कुल्ली करें, उसके बाद नाक में पानी डालें, फिर जहां गंदगी लगी हो उसको धोएं, शर्मगाह को धोएं, उसके बाद फिर आप वुजू करें, उसके बाद दाहिने कांधे पे पानी डालें, फिर बाएं कांधे पे मोंढे पे पानी डालें, आखिर में सर पे पानी डालें और बदन को मल कर और पूरे बदन पे पानी बहा के आप वुजूखाने से बाहर निकल जाए। ये तरीका इस्लामी तरीका है, ये इस किताबों में। वैसे तो आदमी अगर क्योंकि नापाक है, किसी को नदी में धकेल दें और पानी सारे अंग में पहुंच जाए, ये फर्ज तो अदा हो जाएगा, लेकिन एक सिस्टम से जो नहाने का तरीका है वो यही है जो अनवार शरीयत से लेके फतवा रज़िया तक, फतवा रज़िया से लेके बुखारी शरीफ तक तमाम किताबों में जो तरीका बताया गया वो ये है। जब ब्रेन हेमरेज हुआ तब उसने कहा नहाने का ये तरीका है, जो तरीका 1400 साल से इस्लाम बता रहा है, उसी तरीको साइंटिफिक चमत्कार के इस जमाने में उसी को सबसे बेहतर तरीका बताया गया। पता ये चला कि साइंस की तरक्की के बाद इस्लाम डैमेज ना हो जाएगा, इस्लाम का कानून इस्लाम का कानून ये रिवायती तौर पर ये किताबों में न रह जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जाएगी, इस्लामी कानून की बरकतें समझ में आती चली जाएगी, साइंस की तहकीक होती जाएगी, इस्लामी ज़ाब्ते की बरकतें समझ में आती चली जाएंगी। मैंने कहा था मुझको 10 बजे आप खिताब करने दे दीजिए। मैं कुरान करीम की 4 आयतों को मैंने आज पढ़कर और 4 साइंसी तहकीकात को मैं बताकर मैं आपके सामने आज रखने वाला था, ताकि पढ़ा लिखा इलाका अगर 1000 लोगों में 2 4 10 बच्चे अगर हिल गए, वह साइंस पढ़ने के साथ कुरान के मुताबिक आदी बन गया, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई। मैं बताना चाहता था कि कुरान करीम में वह बात है जो आज जिसको तुम समझता है कि माँ के मरने के बाद 4 में पढ़ी जाती है, 40वां में देख उस कुरान पाक में क्या अजायबात पोशीदा है, क्या वंडर्स पोशीदा है। लेकिन ये रात के 2 बजे तहकीकी गुफ्तगू के लिए बुलाया गया है, इसे तो मैं कहता हूँ कि जलसा जुलूस को वो तो आपकी हिम्मत है, वो दस्तारबंदी का माहौल है, इसीलिए आप इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वरना दस्तारबंदी ना होती तो आधा मजमा सारा मजमा साफ हो गया होता। तो मैं सिर्फ ये नहीं देखता हूँ कि 10,000 का मजमा है, मैं उसी तेवर में बात कर रहा हूँ जिस तेवर में 10 बजे रात में बात की जाती है, जिस तेवर में 10 लाख के बीच में बात की जाती है, उसी तेवर में मैं बात कर रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि अगर 10 में से 2 आदमी का सीना हिल जाए, वह इस्लामी ज़ाब्ते के मुताबिक नहाना धोना खाना पीना पहनना लिखना शादी ब्याह करना दुल्हन का सिलेक्शन करना जज्बात में बहकर नहीं शरीयत की रोशनी में करने लगे, तो उसको शिकायत कभी न होगी कि मेरा बेटा चोर हो गया, मेरा बेटा डकैत हो गया, मेरा बेटा मेरा आवारा हो गया। नहीं, ये दुनिया का सारा काम सिस्टम से आधारित है। तो जब माँ हो फातिमा और बाप हो अली, तो बेटा लुच्चा नहीं होता, बेटा शहीदों का सरदार हसन और हुसैन पैदा होता है। जब बाप हो रात भर तक का नमाजी और दिन भर का जिहाद करने वाला और माँ हो सर से लेकर पांव तक नेकियों का मुजस्समा, तो उसका बेटा आवारा नहीं होता, उसका बेटा कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब बाप हो मौलाना अहमद अली बुखारी जैसा और माँ हो सैयदा ज़ुलेखा
जो जवानी में बेवा हुई थी, 80 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ी, मेरे सर से आंचल नहीं खिसका, चेहरे पे अजनबी मर्दों की नजर न पड़ी, हाथ की कलाई किसी गैर मर्द ने नहीं देखा, जवानी में बेवा हो चुकी थी, मगर निजामुद्दीन की परवरिश करते हुए उन्होंने बेटे को जो वली कामिल बनाया है, जिसकी वजह से दिल्ली का बादशाह से लेकर चपरासी तक तहज्जुद गुजार हो गया, नमाज इशराक चास्ट अवाबिल का पाबंद हो गया, अय्याम 20 के रोजे रखने वाला और जिलहिज्जा के 1 से लेकर 9 तारीख तक रोजा रखने वाला, बादशाह से लेकर चपरासी तक दिल्ली के सारे मुसलमान हो गए। कौन था जो महल से लेकर झोपड़ी तक सब में इस्लामी इनकलाब बर्पा किया? वो वही था जिसकी माँ अपनी इस कदर इज्जत का ख्याल रखने वाली और जिसका बाप जाहिद तो उसी की कोख का बच्चा निजामुद्दीन औलिया देहलवी पैदा हुआ, जिसने बादशाह से लेकर चपरासी तक के दिलों को हिला के रख दिया। और जब बाप जागीरदार थे, जागीरदारी को छोड़कर फकीरी की चादर ओढ़ ली और माँ तहज्जुद गुजार उस मुफ्ती नकी अली खां के कोख का बच्चा करोड़ों सुन्नियों के ईमान का मुहाफिज अहमद रजा खां पैदा हुआ है। जब बाप हो आला हजरत और माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा हुज्जतुल इस्लाम पैदा हुआ, तब मुफ्ती आजम हिंद पैदा हुआ। और फिर अभी करंट हिस्ट्री, दादा हो हुज्जतुल इस्लाम, काफिर देखे तो चेहरा कलमा पढ़ ले, नाना हो मुफ्ती आजम हिंद, डकैत देखे तो मुत्तकी परहेजगार हो जाए, 91 साल की उम्र में जवानों जैसी नमाज पढ़ने वाला और माँ ऐसी रात भर तहज्जुद पढ़ने वाली, जरूरत पड़े तो जेवरात रखकर जेवरात देकर मंजर इस्लाम चलाने वाली, और बाप 1 लाख मुरीदों का मुर्शिद, हिंदुस्तान का जबरदस्त मुफस्सिर आज़म हिंद, अपना पैसा तालिब इल्मों के पीछे मुरीदों के पीछे खर्च करने वाला, मुरीदों के नजराने पे जिंदगी नहीं गुजारने वाला, खुद फाका करने वाला, मुरीदों को शानदार खाना उसके इलाकाई एतबार से खिलाने वाला। जब बाप इतना बड़ा जाहिद हो, माँ इतनी बड़ी इबादत गुजार और दादा हुज्जतुल इस्लाम, नाना मुफ्ती आज़म हिंद, तब उस कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद बरहक अख्तर रजा का अज़हरी ताजुल शरिया पैदा होता है। दुनिया का सारा काम सिस्टम से होता है, उसूल और ज़ाब्ते से होता है, सिर्फ सपना देखने से नहीं होता कि मेरे घर से सोने की हांडी निकल जाएगी, अल्लाह चाहेगा तो छत से हीरे की हांडी निकल आएगी और हम मालदार हो जाएंगे। अल्लाह तो चाहता है कि तू मेहनत कर, तू घर से निकल, तू नमाजी बन जा, तू रोजेदार बन जा, मेरे महबूब का गुलाम बन जा, तेरे ज़बान पे कुरान जारी हो, तेरी बेटियां सब फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाए, तेरे घर में इस्लाम, तेरे समाज में इस्लाम, चार दीवारी में इस्लाम, बाल बच्चों में इस्लाम, समाज में इस्लाम, रिश्तेदारी में इस्लाम, तो फिर मुस्तफा का गुलाम तो बन जा। उसके बाद देख जमीन से खजाने कैसे निकलते हैं, आसमान से रहमतों की बारिश कैसे होती है, दुनिया को कैसे मुसख्खर किया जा सकता है। तुमको विश्वास नहीं होता है? अरब का बकरी चलाने वाला, अपने कांधे पे घर रख के चलने वाला, तंबू गाड़ा, ऊपर चादर फैलाया, घर बनाया, सोया, सुबह हुई बांस उखाड़ा, चादर घर पे लिया, कांधे पे लिया, खाना बदोश चल दिया आगे। वो खाना बदोश बकरी चलाने वाला, उसको मैंने ईरान का हाकिम बना दिया, उसको मैंने रूम का हाकिम बना दिया। उनको घर से बाल बच्चों से मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत इस्लाम की तबलीग से थी। वो जब मेरी राह में निकल पड़ा तो हमने रूम दे दिया, हमने ईरान दे दिया। तुम्हारा जवान सनीमा देखने निकलता है, मोहम्मद इब्न कासिम 18 साल का ताइफ अरब की फादी को छोड़ के हिंदुस्तान आया। 18 साल नौजवान राजा ताहिर की लाखों फौज से टकरा गया, मुट्ठी भर जवानों की एक टीम थी, लाखों की फौज से टकरा गया। अल्लाह का नाम लेकर अरब से निकल के सिंध हिंदुस्तान में आया, निकला है अल्लाह का नाम लेकर। अल्लाह देख रहा है, वो निकला है घर से अपनी जान अपने माल को छोड़कर, अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने वतन को छोड़कर ये निकला है इस्लाम की खातिर। अल्लाह ने वो फतह दे दी कि 900 साल तक हिंदुस्तान की सरजमीन अल्लाह ने मुसलमानों के हवाले कर दी। सिंध से लेकर पूरे भारत में 900 साल तक कलमा पढ़ने वालों ने शासन किया। अल्लाह चाहता है कि तू निकल, पहले मेहनत कर, सिस्टम के मुताबिक काम कर, फिर देख। चुनांचे वो साइंसदान, वो थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मेगाटेक तेजस सिंह, उन्होंने किताब लिखनी शुरू की कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। वो इसको पर मैं रिसर्च करूंगा, मैं तहकीक करूंगा। 10-20 साल दिमाग चलाया, किताब लिखी, प्रेस से बाहर किताब आई, दुनिया में धूम मच गई, इस्तिकबालिया दिया जाने लगा, उसके सरों पर पगड़ी बांधी जाने लगी। तुमने जो काम किया अब तक कोई नहीं किया, किसी को पता ना था कि दर्द की फीलिंग चमड़े में होती है। चुनांचे गाहे बगाहे सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इस्लाम और साइंस के अनुमान से एक सेमिनार होता है। दुनिया भर के बड़े साइंसदानों को दावत दी जाती है और इस्लामिक स्कॉलर को बुलाया जाता है। उस सेमिनार में मेगाटेक तेजस सिंह को दावत दी गई। वो आया, उन्होंने अपनी रिसर्च के ताल्लुक से सारे मंदूबीन को उन्होंने रोशनास करना शुरू किया। हमने 20 साल तक मेहनतें की, हमने इस तरीके से हम गुजरे, हमने ये तजर्बा
किया तब पता चला कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। एक मुस्लिम स्कॉलर ने कहा, मेगाटेक तेजासन जी आपकी मेहनत को मैं दाद देता हूँ, सारे मुसलमान आपकी मेहनत को सराहते हैं, आपने 10 साल दिमाग जलाया, आपकी मेहनतों को मैं सलाम करता हूँ। बस सिर्फ कुरान शरीफ की एक आयत में पढ़ता हूँ, उसको गौर से सुन ले। मेगाटेक तेजासन मुहक्किक थे, रिसर्चर थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा हाँ आप सुनाइए। वो हिंदुस्तान के चंद लुच्चे लफंगे की तरह न थे। नहीं मैं नहीं सुनना चाहता कुरान, मैं कुरान नहीं सुनना चाहता, हम उसकी बात नहीं करते जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ। ये सब लुच्चे लफंगे लोग हैं। वो जो पढ़ा लिखा वैज्ञानिक है बोला हाँ बिल्कुल आप सुनाए, मैं सुनता हूँ। उन्होंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी, वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह फरमाता है जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, यानी जिन्होंने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, जो कुफ्र किया, नहीं माना कि अल्लाह है, अल्लाह के कलाम सच्चा है, तो अल्लाह कहता है कि हम उसके अनकरीब जहन्नम की आग में जलाएंगे। सौफ़ नुस्लिहि नारा, अनकरीब हम उसे आग में जलाएंगे। कुरान का तेवर यही रहता है, क़यामत का जिक्र रहता है, उसमें कोई मिसाल दी जाती है। जिक्र नमाज रोज़े हज और ज़कात का होता है, उसमें कोई मिसाल दी जाती है। जिक्र ईमान के नूर का होता है, उसमें कोई मिसाल दी जाती है। वही मिसाल की ज़बान को देखकर साइंस के चैप्टर पे वो रोशनी पड़ती है कि बंदा दंग रह जाता है। यहाँ चर्चा क़यामत का है, जहन्नम में जलाए जाने का है। और ये मेगाटेक तेजासन जी की रिसर्च यहाँ आज की 1400 साल पहले कुरान नाज़िल हुआ, आज उस बंदे ने तहकीक की दर्द की फीलिंग चमड़े में होती है। एक वैज्ञानिक बात थी, लेकिन कुरान इशारे में किस कदर इससे पर्दा उठाता है और आने वाले दिनों में साइंसदानों के दिमाग को झंझोड़ कर उसे कुरान को खुदाई और इल्हामी किताब मानने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि जिसकी मिसाल किसी दूसरी किताब में ना मिलेगी। अगर इसमें है तो तेरा ज़मीर क्या बोलता है, किसी बंदे का लिखा हुआ है, हरगिज़ कभी नहीं। कुरान कहता है जिसने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, यानी अल्लाह की जमीन वो काम अपना कर रहा है, अल्लाह का आसमान काम शैतान का कर रहा है, अल्लाह के कलाम को नहीं मान रहा है। अल्लाह अगर हवा रोक दे तो सारे लोग बगैर मछली के तड़प तड़प के मर जाए। अल्लाह जमीन के नीचे से पानी को रोक ले, सारी 30 मार खाई बंदों की खत्म हो जाए। ज़लज़ला का 1 सेकंड का झटका पूरे तुर्की को उजाड़ के रख देता है। सुनामी का एक झटका 10 लाख की आबादी को समंदर में गुम कर देता है। अल्लाह अगर नहीं अजाब देता है, इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है। मैं अल्लाह हिल्म से काम लेता है। जो मेरी आयतों को जमीन में नहीं माना, उसको तो क़यामत के दिन मरने के बाद जलाएंगे आग में। दुनिया तो आलम में जज़ा नहीं है, ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है, काम की जगह है। जैसे चाहना है काम करो, मगर आखिरत तो सिर्फ बदले की जगह है। अल्लाह कहता है जो मुनकिर हुआ मेरी आयतों का, नहीं माना मेरी बात, हम उसे तो आग में जलाएंगे क़यामत के दिन, जहां दारुल जज़ा है, जहां किसी का नहीं चलेगा। अल्लाह कहता है कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, जब उसकी खाल गल जाएगी आग में जलाएंगे। आग का खूंटा, आग की जंजीर, आग की दीवार, आग की छत, जब चमड़ा गलेगा उसका 1 सेकंड में जलकर राख हो जाएगा। अल्लाह कहता है बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, फिर उसकी जगह हम दूसरी खाल पैदा कर देंगे। क्यों? लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि दर्द का मजा चखे, ताकि वह अज़ाब का मजा चखे। तो हाँ, हड्डी बदलने की बात अल्लाह ने नहीं की, गोश्त बदलने की बात नहीं की। अल्लाह ने कहा कि जब ये खाल गल जाएगी आग में तो बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वह दर्द का मजा चखे। मेगाटेक तेजासन जी की आंख पटी की पटी रह गई, पांव तले की जमीन खिसक गई, सारे मंदबीर महवे हैरत थे। मेगाटेक ज्यादा महवे हैरत था, चूंकि मैं पहला शख्स हूँ जिसने ये पता लगाया है कि दर्द का मजा चमड़े में चखाया जाता है, दर्द का एहसास चमड़े में होता है। ये कुरान 1400 साल पहले नाज़िल हुआ, इसमें यही तसव्वुर मौजूद है कि चमड़ा गलेगा, उसकी जगह दूसरा चमड़ा पैदा कर देंगे ताकि वह दर्द का मजा चखे, अज़ाब का मजा चखे। हड्डी और गोश्त का नाम भूल लिया गया, चमड़े की तब्दीली की बात की गई। बज़ाहिर वाज़ेह तौर पर मालूम है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, इसलिए इसके बदलने की बात की गई। मेगाटेक तेजासन जी ने कहा कि जो तहकीक मैंने पहली बार की है, अगर यही कुरान में मौजूद है, इसका मतलब है कि कुरान में मौजूद है तो किसी बंदे का कलाम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं पहला बंदा हूँ जिस पर मैं रिसर्च किया हूँ। अगर यही बात अगर मौजूद है, ये कलाम रहमान का है, ये खुदाई वाहिद का है, कुरान हक है, अल्लाह हक है,
اسلام سچ ہے، ساری دنیا کو میں گواہ بناتا ہوں، جب سچائی ظاہر ہو گئی ہے اس کو مان لینا چاہیے. I accept Islam, I read there is no God but Allah, I accept Muhammad is the messenger of Allah. یعنی میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میگا ٹیٹ پہ یسر کلمہ پڑھا، مشرف کا اسلام ہوا، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ میگا ٹیٹ کی جگہ جتنے بھی ویگیانک قیامت تک پیدا ہوتے جائیں گے، اگر ان کا ضمیر زندہ ہے اپنی تحقیقات کو قرآن میں دیکھیں گے، وہ سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کا غلام ہوتے چلے جائیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جلسے دستار بندی، نعرے تکبیر، دکھائیے نا نعرے رسالت. پگڑی دکھائیے، پگڑی دکھلائیے، پگڑی دکھلائیے، پگڑی دکھلائیے، پگڑی دکھلائیے. ابھی تو 4 باتوں میں سے ایک بات تو میں بتایا ہوں، ابھی 3 باتیں بھی رہ گئی. کچھ نہیں سنیں گے، پگڑی وگڑی سب رہ جائے گی صبح فجر کے نماز تک. بولتے ہیں سنیں آپ لوگ، سنو لوگ. ہاں ہاتھ اٹھاتا ہے. اب اگلے سال سنائیں گے، اب اگلے سال سنائیں گے. اگلے سال کیا انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے سال وہ 3 آیتیں باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے سال سنائیں گے. جلسہ کرانے کا یہ سسٹم نہیں جو آپ لوگ کرواتے ہیں، خالی ناز سنا چلے گئے. پیر کا کام ہے آخر میں آ کے دعا کرنا، آخر میں دعا کرنا، آخر میں پگڑی باندھنا، بچوں کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھ کر کے دعا دینا. یہ کام سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے. پیر صاحب بھی آج کل خطیب بن رہے ہیں اور شروع میں آ کے بھاگنا چاہتے ہیں. وہ صاحب 15 سال پہلے ہم آئے تھے اس علاقے میں، اس موقع سے بھی یہی ہوا تھا. آئے اپنا بول کے چل دیے، ٹھیک ہے ہمارے پیر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم سب احترام کرتے ہیں، لیکن سسٹم ہونا چاہیے. سسٹم وہی ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کو بلایا ہے اور پھر نوجوان بچے جمع ہیں، دستار بندی کا موقع ہے، قرآن اور حدیث کی سچائی پہ ایک زبردست خطاب ہونے والا ہے، اس کو سنوا دیں جی بھر کے بچوں کو. نہیں بس اپنا آئے، اپنا چل دیا، اپنا کام ہو گیا اور صاحب سارا مجمع اجڑ جائے. شروع میں کتنا بڑا مجمع تھا، کتنے لوگ تھے، سارے لوگ سن لیے ہوتے. چلیے ہٹائیے، الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں، اگرچہ ہم اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں. سرکار تاج الشریعہ نے منع کہ میرا اپنا کوئی آفیشیل نہیں چینل نہیں ہے، میں نے آج تک کوئی آفیشیل چینل نہیں بنایا ہے. میں اپنی کوئی تقریر میں خود سے آج تک میں نے اس کو ویڈیو بنا کے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا. وہ یہ سب کر لیتے ہیں، البتہ تھوڑی سستی ہے ہوتی کہ میں ڈانٹ کے منع نہیں کر پاتا ہوں، چونکہ میں اس لیے نہیں کروا پاتا ہوں چونکہ اس کے بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. ہزاروں سینکڑوں فون آتے ہیں کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز کی پابندی کر رہا ہوں، میں داڑھی رکھ رہا ہوں، میں آپ کی تقریر سن کر کے میں قضائے عمری پڑھ رہا ہوں، 10 سال کی نماز قضا ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں. بس اسی سے تھوڑا سا نارمل ہو جاتا ہوں، تھوڑی شدت نہیں کر پاتا ہوں، ورنہ اس کے جواز کے قائل نہیں. فتویٰ وہی صحیح ہے جو سرکار تاج الشریعہ کا دیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس گفتگو میں برکتیں عطا فرمائے، مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، سارے نوجوان بچوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ چند جملے کڑوے نکل جاتے ہیں چونکہ اس قدر میل جم چکا ہے کہ سخت ڈٹرجنٹ چاہیے اس کے لیے. اگرچہ پیار محبت کی زبان اچھی ہوتی ہے، قول اللینا قرآن میں آیا ہے کہ لوگوں سے آپ نرم بات کیجئے، لیکن کیا کیجئے گا، وہ نرم بات کا پیغام سب بالکل 100% درست ہے، لیکن اس قدر میل جم چکا ہے کہ تھوڑا سا اس کو زبردست طریقے سے جھنجھوڑنے کے لیے کچھ سخت جملے نکل جاتے ہیں. مگر کڑوی دوا زیادہ اثر کرتی ہے، اس لیے نرم دوا کے بجائے میں کڑوی دوا میں زیادہ وشواس کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی فائدہ پہنچا دے، جلدی آپ کو بدل دے، آپ کے دل چہرہ بدل دے، آپ کی سوچ بدل دے، آپ کا لباس بدل دے، آپ کے جینے کا انداز بدل دے. اللہ تبارک و تعالی آج کی محفل کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی سامعین و حاضرین ہیں اور جتنے بھی طلبہ ہیں سبوں کو اللہ اپنے محبوب کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. زور سے بولیے نا آمین. آمین. ہاتھ اٹھا کے بولیے آمین. ایک بار میرے ساتھ مل کر کے زور سے پڑھیے وہ کلمہ جو دلی کے جوکر کا سینہ ہلا دے. زور سے بولیے لا الہ الا اللہ. خوب زور سے بولیے، ابھی بقرعید کا موسم آ رہا ہے.